اماں مت کریں ایسا، مجھے میری ہی نگاہوں میں مت گرائیں آپ، نکاح کر لیا میں نے آپ لوگوں کے کہنے پہ، اب رخصتی نہیں ہونے دوں گی میں۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے حلق کے بل دھاڑی تھی، سب نے دہل کر اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں سوائے نفرت کے کوئی اور تاثر نہیں تھا۔ پریسا نے ہمت کرتے اس کی جانب بڑھنا چاہا مگر عفیفہ ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک گئی۔ آگے مت آنا عفیفہ، اب انہیں مزید کچھ بھی برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے، کوئی بات سننے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ التجائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ عافیہ نے گہرا سانس بھرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے تاکہ باہر سب کو ان حالات سے باخبر کر سکیں۔ مریم نے اشتعال کے عالم میں اس کی جانب دیکھا جو اس کے بازو اپنے شکنجے میں لیتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کر گئی تھی۔ آنٹی آپ ذرا باہر جائیں، اسے تو ہم نبٹ لیتے ہیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ہاں اب بولو، رخصتی نہیں کرنی نا تمہیں؟ یہیں ابھی تمہارا نکاح اس یاسر سے ہوا ہوتا، اس وقت بھی تم نے رونا لگایا ہونا تھا، اب صدام بھائی سے ہو گئی ہے تو جب بھی تمہارا یہی رونا ہے۔ تم وجہ مت دیکھو کہ کس بدولت تمہارا نکاح ہوا، تم بس یہ دیکھو کہ تمہارا نکاح اس یاسر سے نہیں ہوا۔ مریم اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑتے جھٹکا دیتے باور کروانے والے انداز میں بولی۔ عفیفہ نے ناگواری سے نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ اچھا اب میں مظلومیت کا رونا روتے ان کے تلوے چاٹوں جنہوں نے مجھے اپنا نام دے دیا ہے؟ نہیں چاہیے تھا مجھے ان کا نام، میرے باپ نے اگر زبردستی کی تو ان کے باپ انکار کر سکتے تھے، مگر نہیں، یہاں سب کو اپنے گریڈ بڑھانے کی پڑی ہوتی ہے۔ اس کی بدگمانیاں عروج پر تھیں، سب نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا، البتہ پریسا کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ تنفن کرتی اس کے سر پر پہنچی اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ کسے گریڈ بڑھانے کا شوق ہے عفیفہ؟ میرے باپ کو؟ آئندہ میرے باپ کے متعلق کوئی ایسی بات مت کرنا، کیونکہ میں ان کے خلاف ایک بات برداشت نہیں کرتی، پھر مقابل چاہے میرا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ تم نے اس وقت انکل کی حالت دیکھی تھی، وہ کیسے منت سماجت کر رہے تھے، اس موقع پر بابا مان گئے تو وہ برے ہیں، اگر نہ مانتے تو اس وقت بھی انہوں نے برے ہی ہونا تھا۔ سچ میں یہ دنیا احسان فراموش ہی ہوتی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ احسان فراموش وہ بھی میں؟ پریسا تم بتاؤ، تمہارا نکاح اگر ایسے ہوا ہوتا؟ وہ مرے مرے لہجے میں گویا ہوئی۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، وہ اسے جتانے والے لہجے میں بولتی دونوں ہاتھوں میں دکھتا سر گرا گئی، ایک جانب صدام تو دوسری جانب عفیفہ۔ پریسا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے عفیفہ، تم اب بات کو طوالت بخش رہی ہو، مزید کچھ نہیں، کمزور مت پڑو پلیز، کیونکہ جتنا تم خود کو کمزور دکھاؤ گی اگلا انسان تمہیں کمزور جتائے گا، مضبوط رہو گی تو کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں توڑنے کا سوچ بھی سکے۔ بریزہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی۔ عفیفہ نے نہایت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، دل میں ابھی بھی صدام کے دیکھنے کا انداز کھٹک رہا تھا، مگر جس کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے، وہ خالی خالی لہجے میں بولتی اپنی انگلیاں آپس میں الجھاتے مسلنے لگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدمہ دونوں جانب سے لگا ہے، وقت تمہیں بھی درکار ہے، وقت انہیں بھی درکار ہے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، تم بیوی ہو، اب ان کی غلام نہیں ہو، خود کو ان کے قدموں میں کبھی مت گرانا عفیفہ، جب تک وہ تمہاری جانب خود کوئی پیش قدمی نہیں کر لیتے۔ اناب کی بات پر سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا، ان سب کی باتوں نے کافی حد تک اسے تقویت بخش دی تھی، تبھی نم نگاہوں سمیت مسکرا دی تھی۔ پریسا نے آگے بڑھتے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کی تیاریاں ہوتے ہی سب باہر لاؤنج میں موجود تھے۔ عفیفہ نے آنکھیں میچتے گہرا سانس بھرا اور خود پر قابو پایا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان حالات میں کمزور تو اب کبھی نہیں پڑے گی، مگر اس دوران اس نے نعیم کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ابھی ناراض ہے وہ آپ سے، مگر آپ پریشان مت ہوں، باپ بیٹی کی ناراضگی اتنی طفالت کا شکار نہیں ہوگی۔ وہ نعیم کے شانے پر ہاتھ جماتے متانے سے گویا ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی وہاں سے نکلتے آفندی ہاؤس کی جانب روانہ ہوئی تھی، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا صورتحال ہے، کچھ معلوم ہوا یا نہیں؟ وہ اس وقت فرنش فلیٹ پر موجود تھا اور لاؤنج میں موجود صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا مقابل شخص سے محو گفتگو تھا، جس کی پیشانی پر ننھی منھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں کیونکہ مقابل قہر برساتی نگاہوں سمیت اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اسے اس کی لہو رنگ نگاہوں سے خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بغور لیپ ٹاپ میں پلے کا بٹن دباتے اسکرین پر چلتے دوڑتے مناظر دیکھے تھے۔ میں تم سے مخاطب ہوں نواب، کچھ معلوم ہوا یا نہیں؟ وہ میز پر موجود شیشے کا گلدان زمین پر مارتے اشتعال کے عالم میں دھڑا تھا۔ نواب نے کانپتے ہاتھوں سے اسے ضبط کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ سر میں دیکھ رہا ہوں، اب آپ مجھے ایسے دیکھیں گے تو میں کیسے اپنا کام کر پاؤں گا؟ وہ دانت پہ دانت جماتے حلق تر کرتے ہوئے گویا ہوا۔ شہرام خان نے اپنی پیشانی مسلتے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اس دوران اس کی بائیں ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی جو اس کی بے چینی کی گواہ تھی۔ نواب نے پرسکون سانس فضا کے سپرد کرتے اس رات کی ہر ویڈیو کو پلے کیا تھا، مگر ہر ویڈیو میں ناکامی ہی حاصل ہو رہی تھی۔ مان لاؤنج کی فضا میں فون کی جھنگھاڑتی ہوئی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی، جہاں غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے ناگوار نگاہ موبائل کی سکرین پر ڈالتے موبائل پٹکنے والے انداز میں میز پر رکھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتے اس تک پہنچا جو پوری دل جمعی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔
لیپ ٹاپ دو۔ اس کی سرد آواز پر نواب نے ناسمجھی سے لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اب شہرام کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہی تھیں۔ اب وہ ایک ایک ویڈیو کو دوبارہ پلے کرتے بغور ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے کسی کا نمبر ملایا تھا۔ تقریباً دوسری بیل پر مقابل کی جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ مجھے 1 گھنٹے میں دالان کے پورے حصے کی مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے۔ 24 گھنٹوں کی 1 منٹ بھی مس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسا کچھ ہوا میں تمہیں جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس کے دھمکی آمیز لہجے پر مقابل کی روح فنا ہوئی تھی۔ جی سر، میں پونے گھنٹے میں آپ تک پہنچتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ شہرام نے بنا کسی وقت کی تاخیر کیے کال کاٹی تھی اور دوبارہ اپنی توجہ لیپ ٹاپ کی جانب مبذول کرا لی۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بناتے لبوں پر جمائی تھی۔ نواب نے چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کی ایک ایک حرکت اس کے ضبط کی گواہ تھی۔ وہ غور سے شام 8:30 بجے کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ مان 1 سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھیں۔ اسٹاپ اٹ نواب، اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر نواب نے ویڈیو جو ہی روکی شہرام کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ مطلب وہ رسم سے اتنی دیر پہلے حویلی میں ہی موجود تھا۔ اس کی سرسراتی ہوئی آواز پر نواب نے ویڈیو کو زوم کرتے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شہرام کی نگاہوں کے عین سامنے پرکھا کا ہنسا مسکراتا چہرہ آسم آیا تھا۔ اس نے باقاعدہ اپنا سینہ مسلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو پیچھے کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھٹن کا احساس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں جلے پیر کی بلی کی مانند ٹہل رہا تھا۔ آخر حویلی میں آ کر کون ایسی سنگین غلطی کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ نواب کی آواز پر شہرام نے پتھریلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جس نے بھی کی ہے، دوبارہ اس نے یہ حرکت کرنے کا سوچا تو اس کی ہمت نہیں رہے گی، کیونکہ میں دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ جان سے جائے گا وہ، جان سے۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے کتوں کو نہ کھلائے تو میرا نام شہرام خان نہیں۔ وہ خردرے لہجے میں اسے باور کرواتے چادر درست کرتے اس سے قبل کے باہر کی جانب بڑھتا۔ اس کے موبائل کی بیل نے ایک بار پھر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ سر، آپ کا موبائل۔ نواب نے سرعت سے فون اس کی جانب بڑھایا تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اس نے بنا کسی تردد کے استفسار کیا۔ نوفیل۔ یک لفظی جواب سن کر اس کا چہرہ ایک دم نہ جانے کس سوچ کے تحت تاریک ہوا تھا۔ مان اگلے ہی لمحے وہ گلا کھنکارتے سر تاثرات چہرے پر سجانے میں کامیاب ہو گیا۔ دل ابھی بھی کسی انہونی کے خیال سے دھڑک رہا تھا۔ کیوں فون کیا ہے تم نے مجھے؟ اس کی سرد آواز پر نوفیل نے گہرا سانس بھرتے اپنی نگاہوں کے عین سامنے موجود وجود کو دیکھتے آنکھیں میچی تھی، کیونکہ اب جو بات وہ اس کی سماعتوں میں اتارنے والا تھا، جانتا تھا کہ اس کے وجود میں وہ زہر بن کر اترے گی، مگر بتانا بھی ضروری تھا۔ جواب دو نوفیل آفریدی، فون کرنے کی وجہ؟ اس کے زہر خون لہجے پر جو جواب اسے سننے کو ملا وہ اس کے وجود میں جان نکالنے کو کافی تھا۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے باقاعدہ اندھیرا سا چھایا تھا۔ میرا بچہ، وہ خالی خالی لہجے میں بولا۔ اس کا سر کسی خیال کے تحت بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سمیت باہر کی جانب بھاگا۔ نواب نے بھی اس کی بندوق تھامتے اس کی تقلید میں قدم بڑھائے تھے، جس کا چہرہ لمحہ بلمحہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ گاڑی جو ہی آفندی ہاؤس کے پورچ میں رکی، عفیفہ نے ایک سپاٹ نگاہ اس پوری عمارت پر دوڑائی تھی جہاں آج تک وہ صرف پریسا کی دوست کی حیثیت سے آتی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی اچانک یوں پلٹا کھا لے گی اور سب کچھ ایسے بدل جائے گا۔ پریسا نے اس کا ہاتھ تھامتے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور ڈھیلے ڈھالے قدموں سمیت باہر نکل آئی۔ پریسا کا یوں عفیفہ کا ہاتھ تھامنا صدام کے وجود میں مرچیں سی بھر گیا۔ وہ ایک تنفر بھری نگاہ ان پر ڈالتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا بھائی، غصے میں ہے، کچھ دیر میں ان کا غصہ بیٹھ جائے گا۔ وہ بمشکل مسکراتے لہجے میں بولتی اسے تسلی دینے لگی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل لرز رہا تھا۔ عافیہ، تم عفیفہ کو صدام کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ وہ لوگ جو ہی لاؤنج میں پہنچے، عادل نے صوفے پر جگہ سنبھالتے عفیفہ کو حکم صادر کیا۔ ان کی بات پر ان تینوں نے بیک وقت عادل کی جانب دیکھا تھا، جن کا چہرہ مکمل طور پر سپاٹ تھا۔ چہرے پر ازلی سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ مگر عادل، اس سے پہلے کہ عافیہ کچھ بولتی، عادل نے ہاتھ کے اشارے سے ہی انہیں ٹوک دیا۔ عفیفہ کے چہرے کا رنگ یکلخت بدلا۔ نہ جانے کیوں یہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بیر بنا کر بیٹھ گئے تھے، جو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بے بسی سے ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی اور خاموشی سے اٹھتی عفیفہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ عفیفہ نے گھبرا کر ان کی جانب دیکھا۔ آنے والے لمحات کا سوچتے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ سینے چڑھتے ہوئے بھی اس کی سوچوں کا محور صرف صدام کی ذات تھی، جس کے عتاب کا نشانہ اسے ابھی بننا تھا۔ بابا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بھائی کچھ غلط؟ وہ میری اولاد ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ وہ اپنے سے منسلک رشتوں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ وقتی غصہ ہے، زائل ہو جائے گا میری جان۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے محبت سے گویا ہوئے۔ پریسا ان کی تسلی پر مسکرا بھی نہ سکی، کیونکہ اس کا دل شدت سے کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں ریلنگ کے ساتھ چلتی عفیفہ پر جما دی، جس کی چال کی لڑکھڑاہٹ صاف واضح تھی۔ عفیفہ، میری بات سنو۔ اگر وہ غصے میں کچھ بول بھی دینا تو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ یہ رشتے جذبات میں آ کر نہیں بنتے، نہ ہی جلد بازی میں طے پاتے ہیں۔ مگر آپ اس بات کی اچھے سے گواہ ہو کہ یہ رشتہ کیسے استوار ہوا ہے۔ اب تھوڑی بہت تلخ کلامی ہر رشتے میں ہو جاتی ہے۔
صبر کے ساتھ ہی شروع میں گزارا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے کمرے کے دروازے پہ عین باہر پہنچتے ہی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتی سمجھانے والے انداز میں بولی تھی، آنٹی آپ تو جانتی ہیں نا میرا اس میں کوئی قصور۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ فیصلہ مرد حضرات کا تھا جس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری تھا، مگر فی الوقت صدام کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی ہیں تو مجھے یقین ہے وہ کچھ بھی بولنے سے گریز نہیں کرے گا۔ تو سن لینا، لڑکی ذات کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ چہرہ جھکاتے دھیمے لہجے میں بولی۔ عفیفہ کی گرفت ان کے ہاتھوں میں دھیمی پڑی تھی۔ کیا مطلب آنٹی کہ وہ کچھ بھی کہیں، میں ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے خاموشی سے سہ لوں، جو کریں سن لوں، ہاتھ اٹھائیں تو ان کی مارے کھا لوں، میرے وجود پر کاری ضربیں لگائیں مگر پھر بھی ضبط کر لوں، کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں آنٹی، لڑکی ہوں، کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں کہ سب کچھ برداشت کرتی جاؤں۔ حیرت تو مجھے اس بات کی ہے کہ آپ خود ایک عورت ہو کر یہ بات کر رہی ہیں۔ لڑکی ہونا گناہ نہیں ہے، مگر آج کل کے لوگوں نے بنا دیا ہے آنٹی۔ معذرت مگر یہ واقعہ ہم دونوں کے لیے غیر متوقع ہے، صدمہ ہم دونوں کا ہے، پریشان ہم دونوں ہیں، تو پھر ایک کیوں ضبط ہوئے؟ میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر ان کا مقابلہ کروں گی، اور اگر انہوں نے کچھ بھی غلط بات میرے ساتھ کی تو میں آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتی کہ میں خاموش رہوں گی، میں بولوں گی اور آخری سانس تک بولوں گی، کیونکہ میں خود کو کسی کے آگے ڈیگریڈ نہیں کر سکتی۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولتی انہیں چونکا گئی، اس کے اس نرم لہجے میں بھی ایک کاٹ سی تھی جو عافیہ کو جھنجھوڑ کر رہ گئی۔ انہوں نے شرمندگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ عفیفہ نے طائرانہ نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی، بغیر شکنوں کی بیڈ شیٹ، صاف ستھرا کمرہ، ایک بھی چیز یہاں سے وہاں نہیں تھی، نہ ہی وہ کمرے میں موجود تھا، البتہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، صاف ظاہر تھا کہ وہ فریش ہو رہا ہے۔ چلو تم بیٹھو، میں پریسا سے بولتی ہوں، وہ فی الحال کوئی اپنا ڈریس تمہیں دے دے تاکہ تم چینج کر لو، باقی کل شاپنگ وغیرہ ہو جائے گی۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتی ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے جاتے ہی عفیفہ ڈھہ جانے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس جوڑے میں اسے شدید قسم کی الجھن اور گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس واش روم پر اپنا حق جتانے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اس بابت سوچتے ایک بار پھر اپنے باپ کی حرکت پر اس کی آنکھیں من آنسوؤں سے بھری تھیں۔ کیا صرف اس کی موجودگی سے وہ مفلسی کے دور میں قدم رکھ چکے تھے؟ کیا وہ ان کے لیے سر پر بوجھ بن کر رہ گئی تھی؟ تو کیوں رو رہی ہے عفیفہ؟ رونا نہیں ہے، بس اب مضبوط رہنا ہے، ورنہ یہاں سے بھی ایسی ہی موت ماری جائے گی اور پھر تیرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ ڈوبتے دل سمیت دل ہی دل میں بولتی گہرا سانس بھر اٹھی۔ اسی لمحے واش روم کے دروازے پر کھٹکے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے واش روم سے نکلتا صدام کو دیکھا تھا، وہ جو تولیے سے اپنے نم بالوں کو رگڑتے آئینے کے سامنے بڑھ رہا تھا، اسے سامنے دیکھ چونک گیا۔ یک لخت اس کے چہرے پر شدید اشتعال بھرے تاثرات ابھرے تھے، وہ تولیے کو ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینکتے جارحانہ انداز میں اس کی سمت بڑھا تھا۔ عفیفہ نے حیرت سے اسے اپنی جانب آتے دیکھا، جس کی ماتھے کی نسیں پھولی ہوئی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ شدید اشتعال کے عالم میں دھاڑا تھا۔ عفیفہ نے اپنے خشک پڑتے لبوں کو تر کرتے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینج لیا تھا، دل اس کے لہجے پر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں حق دیا کہ تم اٹھا کر اس کمرے میں بسیرا کرنے آ جاؤ؟ کیا ہماری محبت بھری شادی ہے یا اس نکاح سے قبل تم سے محبت کے وعدے وعید کیے تھے؟ اپنی یہ شکل جہاں سے ایک سیکنڈ میں گم کرو، ورنہ دھکے دے کر نکالنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ تم میری زندگی میں وہ انچاہا وجود ہو جسے زبردستی مجھ سے باندھتے مجھے جہنم کی جانب دھکیل دیا گیا ہے۔ وہ لہو رنگ آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ منہ سے لفظ نہیں، گویا آگ نکل رہی تھی جو عفیفہ کے وجود کو بھسم کر گئی۔ اس نے سختی سے آنکھوں کو میچتے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خاموشی سے اس کے دائیں جانب سے نکلتی، صدام نے اس کی کلائی کو جکڑتے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو وہ لچکیلی ڈال کی مانند اس کی جانب کھینچی چلی آئی۔ صدام نے ایک تمسخر بھری نگاہ اس کے سجے سورے روپ پر ڈالی تھی۔ سجی کسی اور کے لیے تھی، مگر نصیب میں کسی اور کے ہوئی ہو۔ افسوس ہو رہا ہے تمہاری قسمت میں جو ایک جہنم سے نکلتے خود کو دوسری جہنم میں دھکیل چکی ہو، کیونکہ میرے ساتھ تمہاری زندگی جنت ہونے سے رہی۔ وہ اس کی کلائی کو آخری حد تک مروڑتے صفاقی سے بولا۔ عفیفہ کی آنکھیں من آنسوؤں سے بھری تھیں، درد کی شدت سے اس کے لبوں سے کراہ نکلی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر مقابل کی گرفت اس کی کلائی پر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ عفیفہ کو اپنی کلائی کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ صدام کان لپیٹے اسے اپنے ساتھ کھینچتے باہر کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتے اسے باہر کی جانب دھکیلتا، دروازے پر ایستادہ پریسا کو دیکھتے صدام تنفر سے سر جھٹک گیا۔ البتہ عفیفہ کا چہرہ اس کے حدت آمیز لہجے پر سرخ پڑ گیا، مگر اس کے ہاتھ میں موجود ہینگ ہوا سوٹ دیکھ اس نے بامشکل مسکرا کر اس کے ہاتھ سے سوٹ تھاما۔ کلائی ابھی بھی صدام کی گرفت میں ہی مقید تھی۔ بھائی وہ آپ، تم سے کسی نے بات کی پریسا؟ نہیں کی نا، تو خاموش رہو اور مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی بات درمیان میں ہی اچکتے سرد لہجے میں بولا۔ عفیفہ نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں جاؤ پری، تم زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، سوٹ میں نے لے لیا ہے، میں چینج کر دوں گی۔ وہ محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوئی۔ پری نے ایک نگاہ صدام کی گرفت میں لال ہوتی اس کی کلائی پر ڈالی تھی اور مریل قدموں سے آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی عفیفہ نے پرسکون انداز میں اس کی جانب دیکھا۔
कलाई छोड़े मेरी, और आइंदा अपनी हदें तजावुज़ करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नापसंदीदा वजूद ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं ना, उन पर अपना हक नहीं जताया करते। वो एक झटके से उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई आज़ाद कराते दिल जलाने वाले लहजे में बोलती उसकी कलाई अपनी कलाई से हिलाने लगी, जो उस जगह से जलती महसूस हो रही थी। उसके पुरसकून लहजे पर उसके तन बदन में आग लग गई। मुझसे इस तरह उर्दू ज़ुबान में इतनी शाइस्तगी से मुखातिब होने की ज़रूरत नहीं है, समझी? वो उसकी थोड़ी को जकड़ते सपाट लबो लहजे में गोया हुआ। अफीफा उसकी बात पर होले से समझने वाले अंदाज में सर हिला गई। कोई मसला नहीं है, मैं इंग्लिश में मुखातिब हो जाती हूँ, शायद वही ज़ुबान आपकी शान शान हो। सो मिस्टर सदाम आफंदी, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स अगेन, बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। अब तो ये अंग्रेजी ज़ुबान बोली है मैंने, पक्का आपके स्टैंडर्ड के शायान शान होगी, जिसे किसी से भी मुतारिफ करवाते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, राइट? चलें अब हटें पीछे, मुझे चेंज करना है। वो होले से मुस्कुरा कर बोलती उसके सामने अपना सूट लहराने लगी, जो अभी भी परीसा देकर गई थी। सदाम ने तनफुर भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। तुम जैसे लोअर क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग जितनी भी अंग्रेजी बोल लें, उनकी शक्ल सब वाजे कर देती है आफीफा बीबी। उसके जहर खुंद लहजे पे यकलख्त अफीफा के चेहरे पर तारीक सा साया लहराया, मगर अगले ही लम्हे वो खुद पर जब्त कर गई थी। अफीफा ने निहायत सुकून से उसे उंगली के इशारे से पीछे होने का इशारा किया था। तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? ये लड़की उसका जब्त आखिरी हद तक आजमा रही थी, तभी मेज पर रखा गुलदान जमीन पर मारते बेदर्दी से उसे अपनी गिरफ्त में लेते धाड़ा। आपकी बीवी होती हूँ, अफीफा सदाम आफंदी होती हूँ, जिससे आप चिढ़ने का फरीदा सर अंजाम दे रहे हैं। वो दिल ही दिल में खून के आंसू रोती बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे में बोली। सदाम ने खुरदरी निगाहों से उसे देखते झटके से उसकी पेशानी पर मौजूद बिंदी को बेदर्दी से खींचकर उतारते उसे अपने हिसार से आज़ाद किया था। अफीफा के वजूद में दर्द की एक लहर दौड़ गई, जिसकी बदौलत लबों से एक सिसकी निकली थी। किस कदर बेवकूफ़ कर दिया था मुकाबिल शख्स ने उसे। इस वक्त उसे कुछ ही वक्त में वो नम निगाह उसकी पुश्त पर डालते अपना सूट थामते तेज कदमों से वॉशरूम की जानी बढ़ी थी। सद्दाम ने हाथ का मुक्का बनाते उसे दीवार पे मारा था। मैं बोल रहा हूँ, इस कमरे से निकलो। वो अपने बालों को जोड़े में लपेटते जूं ही वॉशरूम से बाहर निकली, सद्दाम चिनक कर बोला। अफीफा ने तासुब से उसकी जानिब देखा, जो मुसलसल अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। क्या हो गया है आपको? एक बात मैं आप पे वाज़ेह कर दूं कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलूंगी। ये महज आपकी गलतफहमी है। अब ये कमरा जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। इस कमरे की हर एक चीज़ पे मेरा भी बराबर का हक है, और अपनी चीज़ों पर मैं हक जता भी सकती हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। सो प्लीज़ फजूल के झंझट में पड़ने से बेहतर है सुकून से सो जाइए। वैसे भी मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है। वो मसनूई जमाई लेते बेनियाजी से बोलते बैठ के दाएं जानिब जगह संभाल गई। मान सद्दाम का मोबाइल रिंग होने की आवाज़ पर उन दोनों की तवज्जो उस जानिब मबजूल हुई थी। सदाम ने चौंक कर साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल फोन उठाया तो वहाँ कोमल कॉलिंग जगमगा रहा था। चेहरे पर एक चमक सी दौड़ गई थी, जो अफीफा की निगाहों से मख्फी नहीं रही थी। उसके दिल में न जाने क्यों एक टीस सी उठी थी। इससे कबल के वो फोन उठाता दूसरी जानिब से कॉल कट चुकी थी। सदाम ने इश्तियाल के आलम में अपने सर के बालों को मुठियों में भेजा था। तुम इस बेड पर कतई नहीं सोओगी। मुझे किसी के साथ भी बेड शेयर करने की आदत नहीं है। उठो और उस सोफे पर जाकर सो, वही तुम्हारी हैसियत है। वो सामने रखे 2 सीटर सोफे की जानिब इशारा करता हुआ बोला। अफीफा ने सुकून से उस सोफे का जायजा लिया और नागवारी से नफी में सर हिला दिया। नहीं, वो बहुत छोटा है, मैं फिट नहीं आऊंगी। हाँ, आप सोना चाहें तो सो सकते हैं। और हाँ, एक और बात, मेरी हैसियत अब आपसे मुंसलिक है, तो सोच समझकर मुझे मेरी हैसियत याद दिलाइएगा। अपने शोहर की यूं इंसल्ट नहीं बर्दाश्त होगी मुझसे। वो मसनूई अफसरदगी से बोलती तकिए सेट करने लगी। सद्दाम गुस्से से झिंझला कर रह गया। मैं वही हूँ जिसे तुम सद्दाम भाई कहा करती थी। तुम्हें देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझसे ऐसे रिश्ते में बनना तुम्हारी किसी घटिया चाल की बदौलत हुआ है। वो कहर बरसाती निगाहों से उसका सुकून भरा अंदाज देख कटीले लहजे में बोला। अफीफा के हरकत करते हाथ उसकी बात पर थमे थे। शादी से पहले तो सभी भाई होते हैं ना। अब अगर आप मेरे शोहर के ओहदे पर फाइज हो गए हैं, तो मैं भाई मुखातिब करके अपने निकाह को क्यों मकरूह करूं? हाँ, अगर कोई दूसरा नाम आपकी शान शान हो तो बता दीजिएगा। मुझे मुखातिब करने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। वो मुस्कुराकर बोलती उसे मुकम्मल तौर पर जिद करती अपनी साइड का लैंप ऑफ कर गई। सदाम ने अजीब से अंदाज में उसकी जानिब देखा, जो अब करवट बदल चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था, उस लड़की का कत्ल कर देता जिसने एक ही दिन में उसे नाको चने चबवाने की कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हें अपनी बीवी के हिलाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसी चोट दूंगा तुम्हें। वो उसकी पुश्त को तकते शातिराना अंदाज में मुस्कुराते एक बार फिर कोमल को फोन मिलाने लगा और अपना तकिया लेते सोफे पर विराजमान हो गया। अफीफा ने जल्दी निगाहों से उसे मोबाइल में मसरूफ देखा था। एक बेमोल आंसू टूटकर उसके गाल पर बहा था। कब तक उसकी जहरीली बातें बर्दाश्त करेगी? वो क्या उसमें इतनी सकत थी? हाँ, उसमें बहुत हिम्मत थी, जो इतने जख्म खाकर भी जिंदा थी। तो ये तो फिर उसके आगे कुछ भी नहीं था। उसे सोफे पर सोता देख वो लब भेज गई थी। किस कदर शदीद नफरत का दावेदार था वो उससे। जहाँ जहाँ तुम्हारा नक्श होगा उस चीज को मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा। ये बात अपने जहन में बिठा लो। इस कदर नफरत है मुझे तुमसे। सोते सोते भी वो उस पर तंज के तीर चलाने से बाज नहीं आया था।
अफीफा ने जब से आंखें मीचते तकिए को मुट्ठी में भेजा था, वो अब हल्की आवाज में किसी से फोन पर मसरूफ था। वो शायद नहीं, यकीनन कोमल ही थी। अफीफा ठंडी आह भरकर रह गई। आंखों से आंसू बहने को बेताब थे, मगर उसे मजबूत रहना था अब। रात के साए हर जानिब अपने पर फैलाने में कामयाब हो गए थे। हर जानिब सन्नाटे का राज था। दूर कहीं से गाड़ियों के शोर की आवाज उसकी समातों से टकरा रही थी। वो दबे कदमों से जो ही घर का दाखिली दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ, पूरे लाउंज में घुप अंधेरा छाया हुआ था। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करते अपने बालों को संवारते जीनों की जानिब बढ़ गया। सच शुक्र था कि वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना उनके सवालों का जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। तुम कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? इससे कबल को वो बेनियाजी से जीने चढ़ता अपने अकब से आने वाली पाटदार आवाज पर वो झिंझला कर रह गया। एक उसी आवाज के आने का तो डर था, और ऐसा कैसे मुमकिन था कि उसे जिस चीज का डर हो वो ना हो। उसने मिस्कीन सी सूरत बनाते अपने बाप कम जान के दुश्मन की जानिब रुख फेरा। जी, मुझसे कुछ कहा क्या आपने? वो रेलिंग के तरफ में टांगे लटकाकर बैठते भौहें उचकाते हुए मसनूई मासूमियत से गोया हुआ। उसकी फजूल खोई पर नवाज के तन बदन में आग लग गई। ऐसा कैसे मुमकिन था कि ये लड़का कोई काम सीधे तरीके से कर लेता या जवाब सीधे तरीके से दे दे? नहीं, यहाँ क्या तुम्हारे अलावा कोई वीर रूह मौजूद है जो इस किस्म के फजूल सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो, या मैंने जिन्नों को मुखातिब करना शुरू कर दिया है? वो गरज कर बोले, साथ ही उसकी आस्तीन खींचते उसे नीचे उतरने का इशारा किया था। आपका कोई भरोसा है क्या डैड? वैसे भी इंसान अपनी नस्ल के लोगों को ज्यादा मुखातिब करता है। वो आंखें मटका कर बोलता उन्हें साकित कर गया। वो तनफन करते उसके सर पर पहुंचे और उसे खींचकर नीचे उतारा था। जवाबन वो बुरी तरह ऊंधे मुंह जमीन बोस हुआ। इसीलिए तो तुम्हें मुखातिब करता हूँ, क्योंकि मेरी नस्ल में तुम जैसी औलाद लिखी है, जो इंसान नहीं हैवान ज्यादा है, जो इंसानों से कम जिन्नों से ज्यादा मुशाबहत रखता है। वो तुम लहजे में तिनक कर गोया हुए। अरे इर्तिजा, हाउ आर यू? यार तुम अभी भी अंकल से ऐसे ही मार खाते हो? अपनी दाएं जानिब से आने वाली मुतरन्नम खिलखिलाती आवाज पर इर्तिजा के 14 तबक रोशन हो गए। उसने होंकों की तरह अपने सर पर खड़ी शीदा को देखा था, जो मुसलसल उसके दुर्गत बनते देख हंस रही थी। यकलख्त उसके चेहरे के तासुरात आखिरी हद तक बिगड़ गए। आ गई मनहूस डाइन, मेरा खून चूसने, वो खूब से बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला। एक ये लड़की उसे जितनी जहर लगती थी, उसकी माँ की उसमें इतनी ही जान बसती थी। उसकी सरगोशी पर शीजा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। कुछ कहा क्या तुमने? वो चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात सजाए गोया हुई। नहीं, मेरी क्या मजाल जो तुझ जैसी सरदर्द को कुछ कहूँ। वो मुस्कुराते लहजे में बोलते आखिरी बात दिल ही दिल में कुड़ते हुए बोला। तुम्हारे डैड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या बात है? इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो? वक्त देखा है तुमने? नाइमा ने नवाज की जानिब इशारा करते उसे जताया। वो दरअसल शादी का खाना खाने गया था। मैं अपनी शादी का तो नसीब हो नहीं रहा, मैंने सोचा दोस्त की शादी का खाना ही एंजॉय कर लूँ। वैसे भी दोस्त की शादी हो या मेरी, बात तो एक ही है ना। वो मसनूई शर्माकर बोलते दोनों हाथों में चेहरा छुपा गया। अपने बेटे का ख्याल करें नाइमा, आपके बेटे में मर्दाना की बजाय जनाना गर्द जोरों शोर से आ रहे हैं। लगता है लड़कों के साथ लड़कियों की कंपनी में भी बैठना शुरू हो गया है। वह काटदार निगाह इर्तिजा पर डालते हुए तो मुस्कुराना लहजे में बोले। इर्तिजा का हरकत करता हाथ वहीं साकित हुआ था। नाइमा और शीजा ने दोनों हाथ लबों पर जमा लिए। अरे डैड, ताली मारिए ना, ताली, सोचिए मत। वो उसके सामने हाथ करता हुआ मजे से बोला। नवाज ने ना चाहते हुए भी उसके हाथ पर हाथ मारा था। आप जानते हैं फारिस, हादी भी मुझे कल यही कह रहे थे। फिर पता है मैंने उन्हें क्या कहा? वो मजे से बोलते बुलंदो बांग कह लगाकर हंस दिया। मुझे हंसी नहीं आई इर्तिजा। नवाज की सपाट आवाज पर उसके मुस्कुराते लब सरस से सुकड़े थे। उसने संजीदगी से नवाज की जानिब देखा। वो खुशमुखी निगाहों से उसी की जानिब मुतवज्जा थे। मैंने कहा कि मुझे ये आदत अपने डैड से विरासत में मिली है। वो जबरदस्ती उनके हाथ पर हाथ मारता हुआ फलक शगाफ कहका लगाकर हंस दिया। ना चाहते हुए भी उनकी बात पर उन दोनों की भी हंसी छूट गई, जो नवाज की घूरती निगाहों से ही थमी थी। ओ इर्तिजा, यू आर सो फनी। वो बालों को कान के पीछे अड़सते हंसते हुए बोली। इर्तिजा ने टेढ़े मेढ़े मुंह करते उसकी नकल उतारी थी, मगर उसे अपनी जानिब देखता पाकर वो सरस से लबों को फैलाते हंस दिया। एंड यू आर फायर क्रैकर, जो हर जगह आग लगाने पहुंच जाती है। वो दांत पर दांत जमाते हटीले लहजे में बोला, मगर लब हनूज मुस्कुरा रहे थे। खैर तुम यहाँ कैसे? मतलब यूं अचानक? अब की बार वो आंखों ही आंखों में नवाज से माजरत करते शीला की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो बेनियाजी से शाने उचका गई। अब ये यहीं रहेगी। अपने अक्कुब से आने वाली नवाज की संजीदा आवाज पर उसने अजीब से अंदाज में उनका चेहरा जांचा, जहाँ मजाक का शाइबा तक नहीं था। वो समझने से कासिर था कि यहाँ सब इस कदर संजीदा क्यों है। क्यों? मेरा मतलब है वहाँ खाला अकेली। वो अपने दिल की बात को लम्हों पर आने से कबल ही रोक गया था। मुबादा बात बिगड़ ना जाए, मगर उसका खुद का मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था उसके यहाँ रहने की बात पे ही। क्योंकि इसने यहीं की जामिया में दाखिला ले लिया है, अब ये रोज़ तुम्हारे साथ ही जाया करेगी। उनकी अगली बात पर इर्तिजा को अपने अतराफ में धमाके होते हुए महसूस हुए थे। उसने झटके से रुख मोड़ते बेयकीनी की कैफियत में उन सबकी जानिब देखा। क्या हुआ इर्तिजा, कोई मसला है क्या? शीजा की सरसराती आवाज़ पर उसने बिलबिलाकर उसकी जानिब देखा, जो हमेशा ही किसी अजाब की जरूरत में उस पर नाजिल होती थी। मसला बहुत छोटा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा मसला है। मैं पूरी जामिया का इस कदर शरीफ नफ्स इंसान एक लड़की को यूं अपने साथ बाइक पर बिठाकर जामिया लेकर जाऊं, नामुमकिन।
ये गुनाह हमसे ना हो पाएगा, अल्लाह नाराज होगा। वो दोनों कानों को हाथ लगाते तौबा करने वाले अंदाज में गोया हुआ। शीजा ने रूहानी निगाहों से नाइमा की जानिब देखा। कोई ज़रूरत नहीं है ये बकवास करने की। इर्तिज़ा, तुम सबसे इसे मुतारिफ करवा देना कि ये कौन है, फिर कोई बात नहीं बनाएगा। नाइमा ने उसे प्यार से पुचकारने वाले अंदाज में कहा ताकि वो किसी भी सूरत में कायल हो जाए। एकदम इर्तिज़ा के जहन में धमाका सा हुआ। वो हाथ पर हाथ मारते खिलखिलाकर हंस दिया। जी, ये बात बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं बोल दूंगा, मेरी छोटी सी भोली सी बहन है, क्योंकि अगर मेरी होने वाली बीवी को मालूम पड़ा ना कि मैं शादी से कबल यूं लड़कियों को अपनी बाइक्स पर बिठाकर घूमा हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, और जब उसे अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वो मसनूई मासूमियत से अपने लहजे वो मसनूई मासूमियत अपने लहजे में समेटे दिल जलाने वाले अंदाज में बोला, तुम्हें शादी की इस कदर जल्दी क्यों है आखिर? पहले कुछ बन तो जाओ, फिर इन झंझट में पड़ना। नवाज शहादत की उंगली उठाते बाबर करवाने वाले अंदाज में बोले, डैड, शादी होगी तभी तो बनूंगा ना बच्चों का बाप। और रही बात जल्दी की, तो मुझे शादी की नहीं बल्कि आप दोनों को दादा दादी बनाने की जल्दी है। घर में बच्चे आएंगे तो रौनक आएगी तो खुशियाँ आएंगी। आप खुश होंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, और जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप मेरे बच्चों और अपनी बीवी के बच्चे के लिए मजीद अच्छा कमा सकेंगे। और जब आप कमाएंगे तो 400 बहारें ही बहारें होंगी। वो खोए खोए लहजे में ठंडी आह भरते हुए बोला, जबकि उसकी सोचों पर नवाज अश अश कर उठे। इसमें आपका क्या काम है साहबजादे साहब? वो तंजिया निगाहों से उसे देखते हुए बोले, सबसे अहम काम मेरा ही है। बच्चे पैदा होंगे तभी तो आप उनके लिए काम सर अंजाम देंगे ना डैड, आप भी ना। वो लबों पर मचलती शरारती मुस्कुराहट को लबों में दबाकर सरहद से बोलते जीनों की जानिब भाग गया। मुबादा वो उसका कीमा ही ना बना दें। तुम मुझसे बचोगे नहीं, वो गरजदार लहजे में बोले तो इर्तिजा आधी सीढ़ियों पर पहुंचे उनके चिढ़ने पर मजे से कहका लगाकर हंस दिया। आई लव यू डैड एंड गुड नाइट। वो बाएं आंख दबाते उन्हें फ्लाइंग किस से नवाजते तेज तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। आपने भी किस नमूने को ही जन्म दिया है। वो अब अपना गुस्सा हमेशा की तरह उन पर उतार रहे थे। शीला भी खामोशी से वहां से खिसक गई। हाँ तो मैं क्या करूं, आपकी ही औलाद है। वो उनकी हमेशा वाली तकरार से चिढ़कर बोलती सर झटक कमरे की जानिब बढ़ गईं। उन दोनों की बातें याद करते नवाज पेचोताप खाते रह गए। उन दोनों माँ बेटे ने ही उनकी जान अजाब में डाली हुई थी। अस्पताल में कदम रखते ही उसके कदम मन मन भारी हो रहे थे। चारों तरफ में चलते फिरते लोग अजीब सी निगाहों से उसे यूं लड़खड़ाते कदमों समेत चलता देख रहे थे। खान, प्लीज हौसला करें, इर्द गिर्द गुजरते लोग न जाने किन निगाहों से आपको देख रहे हैं। नवाब उसके शाने के गिर्द बादो हुमायूं करते संभालते हुए मुल्तजियाना लबो लहजे में गोया हुआ। उसने हैरान निगाहों से उसकी जानिब देखा और न जाने क्या सोचकर खुद में हिम्मत मुजतमा करते गला खनकारा। चेहरा एक बार फिर बिल्कुल सपाट हो चुका था, किसी भी किस्म के तासुर से पाक। ये मोबाइल था और इसमें सबसे ऊपर वाला नंबर मिलाकर पूछो कि वो कहाँ है। उसने सपाट लबो लहजे में उस पर हुक्म सादिर किया तो नवाब ने उसकी बात पर बिना किसी देरी के फोन मिलाया था, जो अगले ही लम्हे उठा लिया गया। कहाँ हो शहराम खान? मैं नवाब बात कर रहा हूँ, हम दोनों आपके बताए गए अस्पताल में आ गए हैं, आगे कहाँ आना है? उसके सवारी अंदाज पर नौफैल ने मुख्तसरन उसे राहदारी का रास्ता बताते फोन रखा था। उसका दिल ही आने वाले लम्हात का सोचते लर्ज रहा था, न जाने शहराम इस सब का सामना कैसे कर पाएगा और वो बर्दाश्त कैसे करेगा, क्योंकि वो ये बात तो अच्छे से समझ गया था कि उसकी तरह अपनी बहन को बहुत चाहता है। कुछ ही लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो दोनों इसे दूर ही से आते दिखाई दिए। उसने गहरा सांस भरते खामोशी से निगाहों का जाविया बदल लिया। कुछ ही देर में कदमों की चाप अपने नजदीक महसूस करते अपने जूं ही रुख उसकी जानिब फेरा, वो सख्त निगाहें उसी पर टिकाए खड़ा था। कहाँ है मेरी परखा? वो ठंडे ठार लहजे में बोला। लहजा किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। नौफैल ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भेज लीं। ये बात बताने की शायद उसमें हिम्मत नहीं थी, जुबान साथ देने से ही इनकारी थी। मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरी परखा? उसका कॉलर मुट्ठियों में जकड़ते इश्तियाल आमेज लहजे में बोला। आस पास के गुजरते लोग खड़े होते उनकी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। शहराम, हमारी बात सुनो, पर सुकून रहो तुम। ये वक्त जल्दबाजी और गुस्से से काम लेने का नहीं है। इससे जितनी मर्जी दुश्मनी सही, मगर उसकी आंखों में पिन्हा बेचैनी तकलीफ उसकी निगाहों से मक्खी नहीं रही थी। प्लीज मुझे बताओ, मेरी परखा कहाँ है? तुमने कहा था वो यहीं अस्पताल में है, तुमने उसे देखा है, तो बता क्यों नहीं रहे? देखो, तुम्हारी भी तो बहन है, मेहरबानी करके इस मामले में दुश्मनी मत दिखाओ। वो अजियत से बोलते उसके सामने दोनों हाथ जोड़ गया। नौफैल ने आंखें मीचते उसके दोनों हाथों को थामा था और नवाब को वहीं रुकने का इशारा करते उसे अपने बाजुओं के घेरे में लेते आगे की जानिब बढ़ गया। कुछ कदमों की दूरी पर वो जाकर ठहरा था। शहराम ने सुर्ख होती आंखों से उसकी जानिब देखा। मान उसकी निगाहों की ताक़ुब में उसने जो ही निगाहें घुमाई, उसे पूरे अस्पताल की इमारत अपने वजूद पर गिरती हुई महसूस हुई। कदम साथ देने से इनकारी थे। उसने सरहद से शीशे पर हाथ रखते अंदर की जानिब देखा, जहाँ उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। पेशानी पर पट्टी, चेहरे पर खराशें, हाथों पर ड्रिप्स। उसका दिल धक से रह गया। उसने खौफजदा अंदाज में नौफेल की जानिब देखा, जो हाथ दोनों पुश्त पर बांधे चेहरा झुकाए खड़ा था। शहराम ने बेसाख्ता अपने ख्याल की नफी की थी। वो ये बात तो सोच भी नहीं सकता था। वो बेयकीनी की कैफियत में नौफैल की जानिब बढ़ा। क्या हुआ इसके साथ? ये ऐसी हालत में क्यों है? वो उसे झंझोड़ते हुए बोला।
उसकी आंखों में खौफ की तहरीर देख नौफैल के दिल को धक्का सा लगा। शेहराम, वो तुम्हारी बहन के साथ किसी ने जबरदस्ती की है, गलत हरकत की है उसके साथ किसी ने। ये यूं ही मिली है। पुलिस को उनका कहना है कि रेप हुआ है तुम्हारी बहन का। उसके लबों से ये अल्फाज अदा होते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो खड़े खड़े मर जाएगा। उसकी समातों में शीशा अंडेला गया था। वो हैरान था कि वो ये बात सुनकर मरा क्यों नहीं। वो ढह जाने वाले अंदाज में जमीन पर गिरते दीवार से पुष्ट टिका गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने तो उसे गर्म हवाओं से भी महफूज रखा है। ये ऐसे कैसे? तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो पागलों की तरह बड़बड़ाने वाले अंदाज में गोया हुआ नुफैल ने बेसाख्ता उसे संभाला था, जिसकी हालत अबतर होती जा रही थी। देखो शेहराम, हम तो यहाँ बस मोरे का चेकअप कराने आया था, मगर यहाँ पर गैर मामूली रश और शोर देखकर हमको न जाने क्यों अजीब सा लगा था। हम बस देखने गया था, मगर वहाँ परखा को देखकर मालूम पड़ा कि ये तो तुम्हारी बहन है। पुलिस के जरिए उसे यहाँ लाया गया था। उनसे मालूमात ली है तो उनका कहना है कि नदी किनारे उन्हें यूं ही नाजेबा हालत में मिली थी। हमारी तुमसे जो भी दुश्मनी सही, मगर हमारा वजूद काम क्या। मेरा रुआ रुआ तुम्हारी बहन की जिंदगी के लिए दुआ गो है। वो भारी लहजे में बोला। तकलीफ का एहसास रगों पे में सराहियत करता चला जा रहा था। शेहराम ने आसमान की जानिब देखते आंखें मींची तो जबकि बाद दीगरे आंसू उसकी शेव को भिगोते चले गए। वो बहुत छोटी है, 18-19 साल, कोई उम्र नहीं है उसकी। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी किसी ने? अगर मेरे से दुश्मनी थी तो मुझसे निकालता, मुझे जान से मार देता, लेकिन उसे कम से कम जिंदगी भर का रोक तो ना देता। ना जाने किस कदर रोई होगी, मुझे पुकारा होगा, मगर मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। ना खुद को बचा पाया था और ना ही उसे बचा पाया। मैं सच में बहुत नाकारा हूँ। वो तकलीफ की शिद्दत से भीगे लहजे में बोला। नफेल ने अजियत से उसकी जानिब देखा, जिसकी एक ही धाड़ में पूरी हवेली हिल जाती थी। आज वो अपनी बहन के गम में सब कुछ भुलाए फूट फूट कर रो दिया था। उसकी आखिरी बात याद करते नफेल ने नासमझी से उसकी जानिब देखा, मगर अपना वहम समझते सर झटक गया, क्योंकि उसके साथ भला क्या बुरा हो सकता था। देखो शेहराम, हम जानता है कि ये सारा किस्सा फरामोश नहीं किया जा सकता। तुम्हारी बहन किसी कीमती असासे के मानिंद है तुम्हारे लिए, मगर फिलहाल उसे तुम्हारी जरूरत है। अभी उसके पास जाओ, इस मुतालिक बाद में तफसील से बात होगी, क्योंकि जिसने भी ये हरकत की है वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझ कर ये काम हुआ है। वो उसका शाना थपथपाते उसे मजबूत रहने का इशारा करते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और खुद पर ओढ़ी शाल दुरुस्त की थी। शेहराम ने भीगी निगाहों से उसकी जानिब देखा और नमी को बामुश्किल अंदर उतारते इस्बात में सर हिलाते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जिंदगी ने ना जाने अभी कितने जख्म देने थे उसे। वो फकत सोच कर रह गया। तकलीफ इस कदर थी कि सांस भी नहीं ली जा रही थी, मगर हमेशा की तरह उसे जीना था, खुद को भुलाकर अपनों के लिए। एक उसी काम में तो वो माहिर था। अभी भी कमाल तेजी से दोबारा अपने कौल में सिमट गया। मुफेल ने दिल ही दिल में उसकी हिम्मत की दाद दी थी, जो अब छोटे छोटे कदम उठाते दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था, क्योंकि कठिन मरहला तो अब से शुरू होना था। वो भला कैसे सामना करेगा उसका, कैसे निगाहें मिला पाएगा। कैसा भाई था जो उसकी इज्जत की हिफाजत ही नहीं कर पाया। वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, तड़पी होगी, मगर वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि जिसने ये सब किया है उसके वजूद को आग लगाते बरखा की निगाहों के सामने उसे सजा दे। उसे बताए कि किसी की इज्जत टूटने की सजा ये हुआ करती है। वो ढीले ढाले कदमों से चलती स्टूल खींचकर वहीं विराजमान हो गया और हौले हौले उसका सर से हिलाने लगा, जो आंखें मूंदे शायद दवाइयों के जेरे असर थी। उसके चेहरे पर निशान देख शेहराम के वजूद में किसी ने चिंगारियां सी भर दी थी। उसने शोला उगलती निगाहों से उसके माथे पर बंधी पट्टी को देखा था। वो हनूस वैसे ही बैठा यकटिक उसकी बंद आंखों को तक रहा था। जिस दौरान उसकी पलकों की जुम्बिश हुई थी, शेहराम सरल से सीधा हो बैठा। लाला, बाबा जान, लाला, प्लीज बचाएं ना अपनी गुड़िया को। लाला। वो आंखें मूंदे मुसलसल अजियत के आलम में बड़बड़ा रही थी। मां ने एक झटके से उसके लबों से चीख की सूरत में लाला लफ्ज अदा हुआ था। उसने अपनी आंखें एक झटके से खोल दी थी। पेशानी पर पसीने की नन्ही मुन्नी बूंदें भी नमूदार हुई थी। शेहराम जो साकित बैठा उसके लबों की हरकत देख रहा था, जो मुसलसल उसे पुकार रही थी, उसके कांपने पर होश की दुनिया में वापस लौटा। बरखा की निगाह भी उसकी जानिब नहीं उठी थी। वो चट लेटी छत को घूर रही थी। बरखा, यहाँ देखो, लाला यहाँ है। वो धीमे लहजे में शिकस्त के लिए बोला। अपने करीब किसी मर्द की आवाज महसूस करके वो बुदक कर अपनी जगह से उठती उससे फासला कायम कर गई थी। शेहरान में चौंक कर नासमझी से उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में बेतहाशा खौफ नाच रहा था। कौन है आप? जाए यहाँ से। शेहराम की आंखों में उसकी बात से किसी ने मिर्चें सी भर दी थी, मतलब वो उसे पहचानने से इनकारी थी। बरखा, मैं लाला, शेहराम लाला। उसने बोलते साथ उसे थामना चाहा, मगर बीच राह में ही वो उसे रोक गई थी। नहीं, प्लीज मेरे करीब नहीं आना, वरना मैं लाला को बुला लूंगी, लाला को। वो सहमे हुए लहजे में बोलती उसे शेहराम के नाम का ही ड्रावा दे रही थी। शेहराम का दिल बेतरेगा हुआ था। वो खामोशी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी हालत फिल वक्त ऐसी नहीं थी कि वो मजीद कोई बात छेड़ता। वो बेड की टेक से लगी थर थर कांप रही थी। उसने सख्ती से नफी में सर हिलाते दोनों हाथों से कानों को ढांपा था। वो अभी सदमे में है। जहन कच्चा था तो इन बातों को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल काम है। दुआ करो कि जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। नफेल ने नरमी से उसे कायल करना चाहा तो वो उसे देख कर रह गया।
वो नहीं चाहता था कि उसकी आवाज़ सुनकर वो किसी खौफ में मुब्तला हो। शहराम के चेहरे पर खतरनाक हद तक पथरीलापन उमड़ आया। जिसने भी पठानों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है ना, उसने खुद अपनी मौत को दावत दी है। उसकी बोटी बोटी करके कुत्तों को ना खिलाई तो मेरा नाम भी शहराम खान नहीं। वो चेहरे पर पथरीलापन सजाए कहर बरसाते लहजे में धाड़ा। नौफैल ने उसकी बात पर इस बात में सर हिलाते उसे फरखा के लिए पुरसुकून रहने की तलकीन की थी। उन्हें होश आया या नहीं, हमें बाकी की तफ्तीश पूरी करनी है, मुकम्मल जांच पड़ताल करके। इसी दौरान अपने अकब से आने वाली पुलिस की आवाज़ पर उन दोनों ने बैक वक्त उसकी जानिब देखा जो संजीदगी से उन्हीं से मुखातिब थे। अभी वो इस हालत में नहीं है कि आपकी बात का कोई जवाब दे सके। शहराम के सफेद इनकार पर अफसर ने सताइशी अंदाज में उसकी जानिब देखा और बेनियाजी से शाने उचकाते उसके बेड के नजदीक कदम बढ़ाए। नहीं, मुझे बचाओ, कोई है? नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे करीब मत आना, मैं खुद को जान से मार दूंगी। लाला, कहाँ हैं आप? लाला, मेरे प्यारे लाला। वो उनको अपने नजदीक आते देख थर थर कांपते मुसलसल चीखती चिल्ला रही थी। शहराम जारहाना अंदाज में पुलिस की जानिब बढ़ा था और बेदर्दी से उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ा था। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ। देखो शहराम, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। मुफेल ने उसका मुश्तिल होता चेहरा देख उसे संभालना चाहा, मगर वो गहरे गहरे सांस भरते जहरीली निगाहों से उन्हीं की जानिब देख रहा था। इस कानून को मैं चुटकियों में उड़ा दूं, जिससे सारी जांच पड़ताल ऐसे मौके पर ही याद आती है। तुम सबको अपने कदमों तले रौंद डालूंगा अगर आइंदा मेरी बहन के नजदीक दिखाई भी दिए। नहीं चाहिए तुम जैसे खबीसों की कोई मदद, नहीं करवानी हमें कोई तफ्तीश। वो चुपते लहजे में बोलते गुर्राया। तुमने एक अफसर पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। होगे तुम अपनी हवेली के सरदार, मगर हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं और जांच पड़ताल तो हम करेंगे, चाहे ये लड़की कुछ भी करे। वो उसे जताने वाले अंदाज में बोलते दोबारा परखा के जाने मुतवज्जा हुए, जिसका चेहरा खौफ के मारे सफेद पड़ रहा था। इससे कबल के शहराम नवाब के हाथों से अपनी बंदूक छीनते उसके सीने पर तानता नुफैल ने बर वक्त उसे पीछे करते नुफैल के आसार में दिया था और खुद एक झटके से उसका कॉलर अपनी गिरफ्त में देते एक झटका दिया। फिलहाल वो एक भाई होने की हैसियत से खामोश है तो उसको खामोश ही रहने दो। अगर वो धाड़ने पर आया है तो उस धाड़ की लपेट में सबसे पहले तुम ही आओगे, क्योंकि शहराम खान का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। समझ आई हमारी बात? जब एक बार बोल दिया है कि नहीं करवानी तफ्तीश तो नहीं करवानी, मजीद सवाल जवाब का कोई जवाब नहीं है। और अगर अब तुमने दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत की तो तुमसे तुम्हारा ये रुतबा भी छीना जाएगा। वो एक चिट्ठी निगाह उस पर डालते नागवारी से उसे पीछे की जानिब तक गिरते सर मोहरी से गोया हुआ। वो मुश्किल गिरते गिरते बचा और एक काटदार निगाहें दोनों पर डालते अपनी वर्दी को दुरुस्त करते तनफन करता बाहर की जानिब बढ़ गया। शहराम ने तड़प कर परखा की जानिब कदम बढ़ाए, जो सोफे पर सिमट कर बैठी किसी नादीदा नुक्ते पर नजरें जमाए उसे देख कम घूर ज्यादा रही थी। वो उसे संभालना चाहता था, सीने में भेजना चाहता था, मगर उसकी हालत के पेश नजर वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकता था। तभी सख्ती से लोगों को आपस में बेबस कर दिया। मैं अब निकलता हूँ मोरे, इंतजार कर रही हैं, बाहर डॉक्टर से फारिग हो गई होंगी। तुम भी घर जाओ, क्योंकि जो माहौल घर में मुयसर आएगा वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ से यही डर डर कर अपने हवास खोती रहेगी। वो उसे तंबीह करते एक सरसरी निगाह छोटी सी लड़की पर डालते अपने मखसूस पुरवकार चाल चलते बाहर की जानिब बढ़ गया। उसके बरस घर की बातगश मुसलसल उसके समातों पर हथौड़े बरसा रही थी। वो उसे कैसे घर ले जाएगा, किस मुंह से लेकर जाएगा और उन सबको ये बताएगा कि हमारी परखा को न जाने किन हैवानों ने नोच डाला है। वो खुद को इस वक्त बेबसी की इंतहाओं पर महसूस कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद को ही शूट कर डाले, जान से मार डाले। खिड़की से छन सी पड़ती धूप की बदौलत उसने होले से करवट बदलते दोबारा सोना चाहा, मगर एकदम ही ज़हन में धमाका होते ही उसने अपनी मुदी मुदी आंखें खोली और इतराफ का जायजा लिया तो कमरे में किसी ज़ी रूह का नामो निशान तक नहीं था। वो अपने दुखते सर को दबाते बेड पर उठकर बैठी और बालों को जुड़े में मुकैद करते बेड ग्राउंड से पुश टिकाकर बैठ गई। मान उसकी निगाह दीवार पर लगी खिड़की की जानिब उठी, जो दीवार पर लगी घड़ी की जानिब उठी जो सुबह के 8 बजा रही थी। वो गहरा सांस भरकर चप्पल पैरों में अड़सने की कोशिश करने लगी, मगर चप्पल होती तो वो पहनती ना। गुजरी तलक रात पूरी जोरों शोर से उसके जहन के दरीचों में घूमी थी। सद्दाम का रवैया याद करते वो लब भेंच गई। शुक्र है यूनी जाने में अभी वक्त है, प्रीसा भी नीचे ही होगी, मैं भी यूनी ही चली जाती हूँ। वो किसी सोच के तहत बोलती उजलत में वॉशरूम की जानी पड़ी और चेहरे पर पानी का 2-3 छपाके मारती तौलिया से चेहरा साफ करती बाहर आती आईने के सामने जा खड़ी हुई। आईने में अपने अक्स को देखते उसे एक अजीब से एहसास ने आन घेरा था। सिल्वर ज़दा कपड़े पहनकर वो यूनी कैसे जा सकती थी? वो होले होले अपने कपड़ों पर हाथ फेरते स्त्री की तलाश में निगाहें घुमाने लगी, मगर ये इसका घर होता तो मिलती ना। इससे पहले के सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते बाहर की जानी बढ़ती कमरे के दरवाजे पर खटके की आवाज पे उसने दरवाजा यूं ही खोला। मुलाजमा 2-3 हैंग हुए लिबास लिए खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर वो सब अफीफा की जानी बढ़ाया था। बहुत शुक्रिया, वो नरमी से बोलते उसके हाथों से वो कपड़े लेते दरवाजा बंद कर गई। दिल ही दिल में वो तशक्कुर भरा सांस खारिज करते एक पीले और हल्के नीले रंग का लिबास लेते वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। तकरीबन 10 मिनट में ही उसने सादगी में ही अपनी तैयारी पर नजरसानी की और भागने वाले अंदाज में कमरे से बाहर निकली।
यूं नीचे तन्हा जाते हुए दिल अलग धड़क रहा था। वो अपने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते जो ही डाइनिंग के नजदीक पहुंची, सद्दाम को वहीं बैठा देखकर दम साध गई। उसे लगा था कि वो शायद जा चुका होगा और वो खुद भी उसका सामना नहीं करना चाहती थी। अरे आ जाए मेरा बेटा। आदिल की मोहब्बत भरी आवाज पर उसकी हिम्मत बंधी थी। फरीसा ने भी उनकी आवाज के ताक़ुब में उनकी जानिब देखा तो अफीफा को देखकर मुस्कुरा दी। सद्दाम ने नागवारी से सर झटका था। आफिया ने उससे मुस्कुराते हुए सद्दाम के साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो उसके चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया। मान वो उनकी बात किसी सूरत टाल सकती थी तभी कुर्सी खींचकर मान वो उनकी बात किसी सूरत नहीं टाल सकती थी तभी कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई। अपने बैठते साथ ही उसने सद्दाम का कुर्सी खिसकाना शिद्दत से महसूस किया था। अपनी नाकदरी पर उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। वो खामोशी से चेहरा झुका गई। अरे ऐसे क्यों बैठ गई? डालो ना कुछ। आदिल की आवाज पर अफीफा ने बामुश्किल मुस्कुराते अपनी प्लेट में एक ब्रेड का स्लाइस रखा था। बाबा, वो दरअसल परेशान हो गई है क्योंकि ऐसा खाना कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ना। वो तो मुस्कुराना लहजे में बोलते उसकी जात के बरखचे उड़ा गया। अफीफा ने अपना हाथ सड़क से खींचा था। आदिल ने तुम निगाहों से उसकी जानिब देखा। वो तो छोटे घराने से ताल्लुक रखती है, मगर तुम छोटी सोच के मालिक हो सद्दाम, जो यूं महफिल में बैठकर अपनी औरत की जात को निशाना बना रहे हो। आदिल उसकी बकवास पर बिना कोई लिहाज किए गुर्राए थे। उनने उनसे इसकी बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाई थी। और अफीफा बेटा, आज से आप इस घर में इसकी बीवी बाद में, मेरी बेटी पहले हो, इसलिए जो करना है डंके की चोट पर करो। जो खाना है खुलकर खाओ, जैसे खाना है खाओ। किसी ने रोक टोक की अगर तो मैं जानता हूँ कि उसे लगामें कैसे डालनी है। डालो, आप किसी से डरने की जरूरत कभी नहीं है। वो कमाल बेनियाजी से उसे नजरअंदाज करते अफीफा के सर पर हाथ जमाते हुए मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोले। तरीसा ने मोहब्बत से उनकी जानिब देखा, जो हमेशा से ही अपनी बातों अपने कामों की बदौलत उसका आइडियल रहे थे। अफीफा ने उनके नरम लहजे पर सद्दाम की तमाम तलख बातों को पसे पुश डालते ब्रेड पर जैम लगाया और पूरी दिलजमई से खाने में मसरूफ हो गई। इसी दौरान सद्दाम की शोला उगलती निगाहें गाहे बगाहे उसकी जानिब उठ रही थी। मॉम, उसने सबसे आफिया बेगम को पुकारा, जिन्होंने नासमझी से उसकी जानिब देखा। मान उसकी निगाहों का मफहूम समझते वो समझने वाले अंदाज में सर हिला गई। सॉरी सद्दाम, अब तुम्हारी बीवी आ चुकी है, इसलिए अब इसी से मदद लो। मैं अपनी बेटी और शोहर को ही संभालू, वही बहुत है। कम से कम मेरा काम तो बटे। चलो अफीफा उठो और सद्दाम को नाश्ता सर्व करो, और सर्व क्या, दोनों एक साथ खाओ भी। वो डपटने वाले अंदाज में बोलती अफीफा को ताकीद करते हुए बोली। आदिल ने उनकी बात काटनी चाहिए थी, मगर अफीफा की तंबीही निगाहें खुद पर महसूस करके वो जबड़े बेच गई। रीसा इस दौरान खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ थी। इससे कबल के अफीफा उनकी बात का मान रखते अपनी जगह से उठती, सद्दाम ने हाथ के इशारे से उसे टोक दिया। कोई जरूरत नहीं है, अपनी प्लेट तक ही महदूद रहो। मैं किसी के साथ भी अपनी प्लेट शेयर करना पसंद नहीं करता। वो बर्फीले लहजे में बोलते उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से दौड़ा गया। वो सर झटक कर शाने उचकाती दोबारा कुर्सी पर विराजमान हो गई। आंटी, वो बोल रहे हैं कि यूं नाश्ते के दौरान खड़ा होना अच्छी बात नहीं है, मैं खुद ही डाल लूंगा। वैसे भी मैं कौन सा मम्मी डैडी बच्चा हूँ, मैं अपना हर काम खुद करने का आदी हूँ। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट समेत सफेद झूठ बोलते आफिया से बोलते दोबारा अपनी प्लेट पर झुक गई। सद्दाम ने तड़प कर उसकी जानिब देखा, जो किस कदर चालाकी से बात पलट गई थी। हालांकि उसको हमेशा से आफिया सर्व करके देती थी। अरे वाह, मेरा बच्चा शादी के बाद काफी समझदार हो गया है। देख रहे हैं आदि देख रहे हैं आदिल, एक ही रात में कभी एक छोटे से छोटे काम के लिए भी मेरे पास आता था, मगर अब चलो देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम सद्दाम तो अपना काम खुद निपटाएगा। वो तशकुराना लहजे में बोलती उसके सदके वारी चली गई। रीसा ने अफीफा की शरारत पर मुस्कुराते हुए से आंखें दिखाई थी। जवाबन वो भी मजे से उसे देखती बाएं आंख दबा गई। उन दोनों ने बहुत मुश्किल से अपना कहका जब्त किया था। सद्दाम ने कहर बरसाती निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो अब सेब खाने में मसरूफ थी। उसे ये उसका घर कम अफीफा का ज्यादा महसूस हुआ था। तलाक लोमड़ी, वो दांत पीसते हुए धीमी आवाज में गुर्राया। अफीफा ने ठटक कर उसकी जानिब देखा। वैसे थैंक यू, आपने खुद ही कुछ भी डालने से इनकार कर दिया प्लेट में। वैसे मेरा भी कोई मूड नहीं था, वो भी आपको सर्व करने में। आपकी चीजों पर थूकना भी पसंद ना करूं, तो जाके कुछ डालकर आपके साथ खाना नामुमकिनात में से एक है। वो मुस्कुराते लहजे में बोलते मुसलसल उसे जिद करने के चक्रों में थी। सद्दाम का बस नहीं चल रहा था कि उसका सर उसी मेज पर मार दे। वो एकदम नाश्ते से हाथ रोकते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे नाश्ता तो ढंग से करो। आफिया से टोके बगैर ना रह सकी। बहुत शुक्रिया मामा, मैं कर चुका हूँ, और मजे की बात, मुझे हजम भी हो गया है। वो दांत खिचखिचा कर बोला। इनको भी साथ। सॉरी, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले मुझे वहां जाना है। आपकी बेटियां हैं ना, तो आप जिम्मेदारी भी उठा लें। वैसे भी ये दोनों शायद अब मेरे लिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। वो सर झटक कर अजियत से बोला। फरीसा ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। भाई, वो सिसक की उठी थी अपने जान से प्यारे भाई के लबों से ये सुनकर। सद्दाम सर झटकते लंबे लंबे ढक बरता वहां से निकलता चला गया। आदिल ने मुस्कुराते हुए इन दोनों को अपने बाजुओं के घेरे में लिया था और नरमी से फरीसा के आंसू पहुंचे थे। फिर से रो रही हो आप? वो तंबीही लहजे में गोया हुए। फरीसा ने नमी को अंदर उतारते हुए नफी में सर हिलाया। अफीफा भी उसकी हालत पर अफसुर्दा सी हो गई।
نہ جانے کتنے دکھ ابھی مزید اس کی قسمت میں تھے۔ اسے صدام پر حیرت ہوتی تھی، کیا یہ وہی شخص تھا جو لاڈو لاڈو کہتا نہیں تھکتا تھا؟ مگر اب جیسے اسے پریسا میں اپنی بہن ہی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کس قدر دوگلا انسان تھا وہ! اسے اس وقت صدام سے شدید قسم کی نفرت کا احساس دل میں اجاگر ہوا تھا۔ چلیں آج آپ دونوں کو میں ڈراپ کرتا ہوں یونی اور عافیہ، مجھے آج گھر واپس لوٹنے میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ دل بہت گھبرا رہا ہے میرا، یوں کہتے ہوئے نہ جانے کیوں، مگر پھر بھی جلدی آنا ناممکن ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ کیوں؟ دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ نہ جانے کیوں، شاید کام کا بہت زیادہ ہے۔ آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ رات میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ تحمل سے انہیں قائل کرتے انہیں اپنے تعاقب میں آنے کا اشارہ کرتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان دونوں نے بھی خاموشی سے ان کی تقلید میں قدم بڑھائے تھے۔ عفیفہ نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ پریسا آنکھوں میں نمی لیے ہولے سے مسکرا دی۔ عفیفہ نے اس کی حالت پر شدید افسوس کیا تھا۔ ویسے ان کا رویہ تمہارے ساتھ کیوں اس قدر بدل گیا ہے پری؟ حالانکہ نکاح مجھ سے زبردستی ہوا ہے، تمہارا بھلا اس میں کیا قصور؟ وہ دونوں گاڑی میں پچھلی سیٹ پر براجمان تھی جب عفیفہ نے ناسمجھی سے اسے استفسار کیا۔ پریسا کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر عفیفہ کی جانب دیکھا۔ اگر اسے اس متعلق ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو ان کی دوستی میں بھی فرق آ سکتا تھا۔ وہ کسی سوچ کے زیر اثر لرز سے دل سمیت سختی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس وہ اس سب کی وجہ سے ہی سب سے ناراض ہیں۔ وہ ہو جائیں گے ٹھیک، تم پریشان مت ہو۔ وہ اکلاتے لہجے میں بولتی وہ مشکل مسکرا اٹھی۔ عفیفہ نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا مگر پھر اپنا ہی وہم سمجھ کر سر جھٹک گئی۔ اس کے خیال میں بھلا پری اس سے کیا اور کیوں چھپا سکتی تھی؟ عادل نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا برد کیا تھا۔ نہ جانے یہ عفیفہ اور پری کہاں رہ گئے۔ وہ معمول کے مطابق کیفے میں موجود اپنی پسندیدہ جگہ پر کرسیاں لگائے وہاں براجمان تھے۔ ماں ہادی کی آواز پر ان سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے پری کی؟ وہ اس کی گردن کے گرد بازو مائل کرتے بھویں اچکاتے مزے سے گویا ہوا۔ ہادی اس کی بات پر بوکھلاتے اسے ٹہوکا مار گیا۔ سب ان کی حرکت پر مسکراہٹ دبا گئے۔ فارس، کسی کو تو وقت دیا کرو، قسم سے بچپن میں تمہارے ماں باپ نے رکھ کر ایک منہ پر لگائی ہوتی نا تو آج تم ایسے نہ ہوتے۔ مریم اس کی بات پر سب کو چھیڑنے والی عادت سے چڑ کھاتے ہوئے بولی۔ فارس نے رخ اب سکون سے ایک بار پھر اس کی جانب کیا تھا۔ مریم اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں سے گھبراتے کسیا گئی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی؟ اب اس کی بات ہمیشہ کی طرح اس کے کپڑوں پر آ کر ختم ہوگی، اسے یہ بات اچھے سے ازبر تھی۔ قسم سے مریم، اگر بچپن میں کسی نے رکھ کر تمہارے منہ پر 2-3 چپیڑیں رکھ کے لگائی ہوتی نا تو آج تم ایسے پھٹے ہوئے لباس پہن کر نہ پھر رہی ہوتی اور نہ ہی اسے فیشن پر ٹرینڈ کا نام دے رہی ہوتی۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سمیت بولتے اسے جلا کر راکھ کر گیا۔ مریم نے دل ملا کر اپنی کتاب اس کے سر پر کھینچ کر ماری تھی۔ ویسے آن اے ویری سیریس نوٹ، تم کب بدلو گی مریم؟ وہ اس کی جانب جھکتے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ مریم نے کٹیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کبھی بھی نہیں، وہ کندھے اچکا کر بولتی موبائل میں سیلفی لینے میں مصروف ہو گئی۔ فارس نے اس کے ساتھ سر جوڑتے اسمائل کرتے اس کی تصویر کو مزید خوبصورت بنانے کا شرف بخشا تھا۔ مریم بے صبر سے گہرا سانس بھرا۔ باقی سب ان کی نوک جھوک سے خوب محظوظ ہو رہے تھے۔ تم ضرور بدلو گی مریم، یہ بات چاہے تم اسٹیمپ پیپر پر لکھوا لو مجھ سے، وہ آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ اور تم یہ بات اس قدر گارنٹی سے کیسے کہہ سکتے ہو فارس جیٹ؟ وہ مکمل طور پر اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے تمسخرانہ مسکراہٹ سمیت بولی۔ فارس نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیونکہ تمہیں میں ہی بدلوں گا، وہ اس کے بالوں کو کھینچتے چیلنج دیتی نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بولا۔ مریم کے مسکراتے لب اس کی بات پر ایک لمحے کو سکڑ گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کے بالوں کو کھینچے جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس نے اسے دیکھتے مزے سے بائیں آنکھ دبائی تھی اور پیچو تاب کھاتی کلاس کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اس سے زیادہ اس فارس نمونے کو برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ارے عفیفہ بھابی، آپ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ نہیں آئیں؟ ہمیں تو لگا تھا آج سے آپ انہی کے ساتھ آئیں گی۔ ہادی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے مزے سے گویا ہوا۔ بکواس مت کرو میرے ساتھ تم، عفیفہ شہادت کی انگلی اٹھاتے اسے بابر کروانے والے انداز میں بولی۔ پریسا اس دوران خاموشی سے بریزا کے ساتھ والی کرسی پر جگہ سنبھال چکی تھی۔ شادی کو ایک دن نہیں ہوا اور تم تو پوری ہٹلر بن گئی ہو۔ اب حکم اپنے شوہر پر چلانا، کیونکہ ہم اپنی بیویوں کے علاوہ کسی کے نیچے نہیں لگیں گے۔ ارتقا اعلان کرنے والے انداز میں بولتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس نے بے ساختہ اس کا شانہ تھپتھپایا۔ واہ، میری دوستی کا اثر دکھانا شروع ہو گیا ہے تم پر۔ فارس نے بے ساختہ اس کی بلائیں لے ڈالی۔ ارتقا نے ہونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ اچھا بھابی جی، آپ ہم سب سے پہلے کلاس کی جانب پدھاریے، یقین جانیے ہم اپنے بڑوں کی عزت کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس جانب ہے کلاس، یہ سب آپ کے نقش قدم پر چلیں گی تاکہ ان کی شادیاں بھی جلد از جلد ہو سکیں۔ فارس اس کے سامنے سر کو خم کرتے مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ تم آخر کس مٹی سے بنے ہو فارس؟ پریسا افسوس کرنے والے انداز میں بولی۔ مٹی تو وہی ہے جو تم میں استعمال ہوئی ہے، بس اللہ نے مجھ میں رچک زیادہ رکھی ہے۔ جواب ان کو اتنی سنجیدگی سے بولا کہ سب اس کی حاضر جوابی پر کڑ کر رہ گئے۔ اس کے بعد ان میں سے کسی نے بھی اس نمونے کو مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔
अरे ये तो सद्दाम है ना, मगर ये कोमल के साथ क्या कर रहा है? वो लोग अभी अभी लेक्चर से फरागत हासिल करते कैफे की जानिब आए थे कि इस दौरान फारिस की निगाह कैफे में कोने की मेज पर बैठे नफूस पर पड़ी। तभी तहय्युर के मारे फैली आंखों समेत बोला। सबने उसकी बात पर उसकी निगाहों के ताक़ुब में निगाहें घुमाई थी, मगर वहां बैठे सद्दाम और अफीफा को देख उन सबके तन बदन में आग लग गई। सच में अब मुझे अफसोस होता है कि हमने क्यों उस दिन फुटबॉल वाले मैच के दौरान उसका साथ देने की हामी भरी थी। मरियम दांत खिचखिचाते हुए तिल मिलाकर बोली और सबने उसकी बात पर तायदी अंदाज में सर हिलाया था। उन्हें सच में कोमल से इस किस्म की तवक्का नहीं थी, क्योंकि जब हमें मालूम नहीं था कि ये आस्तीन का सांप निकलेगी। बरीजा सुर्ख चेहरे समेत मुश्तल हुई। इसी दौरान दोनों पूछ बिल्कुल खामोश खड़े थे, एक उस दिन की यादों में जिस दिन उसने शहराम खान को हराने के साथ साथ अपना दिल भी हार दिया था, मगर उसके नसीब में कुछ नहीं आया था। और दूसरी जानिब अफीफा, जो उस दौरान इस पुरसुकून मौसम की मानी थी, जिसमें किसी किस्म की भी हलचल महसूस नहीं हो रही थी। हाँ ना, देखो तो सही कैसे जुट कर बैठी है। अफीफा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बीवी हो, तुम्हारा हक है। अब उस पर जो अपने हक से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। तुम जाकर उसे जताओ कि उसकी ये हरकत तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हादी उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए उसे जोश दिलाने की खातिर बोला, ताकि वो कुछ बोले और अपने हक के लिए आवाज उठाए, मगर वो बेनियाजी से सर झटक कर रह गई। मेरी दुआ है कि मुझे भी तुम्हारी जैसी भोली भाली बीवी मिले, जैसे यूं मेरा लड़कियों के साथ जुड़कर बैठने से कोई मसला ना हो। अब सद्दाम को ही देख लो किस कदर पुरसुकून है, हालांकि जानता है कि उसकी बीवी इसी जामिया के इसी डिपार्टमेंट में पढ़ती है। इर्तिजा सताइशी लबो लहजे में गोया हुआ। उसे और क्या चाहिए था? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतनी संजीदा सूरत हाल में तुमसे ही इस किस्म की बातों की तवक्का की जा सकती है इर्तिजा। रीसा अफसोस करने वाले अंदाज में गोया हुई। जवाबन वो शाने बेनियाजी से दान नकोसने लगा। तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? बस कर जाओ खुदारा, और जैसे मैं ये निकाह करके फरामोश कर चुकी हूँ, वैसे ही तुम सब भी कर दो। ये बात फरामोश करके कि मेरा कोई निकाह भी हुआ है। मुझे खुलकर सांस लेने दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो तिनक कर तुम लहजे में बोली। फारिस ने तनकीदी निगाहों से सरतापा उसका जायजा लिया और कटीली निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुमने तो हाथ तो जोड़े ही नहीं, ऐसे कैसे माफ कर दें? कम से कम अपनी बात तो पूरी करो अफीफा भाभी। फारिस आंखें घुमाते हुए दिल जलाने वाले लहजे में गोया हुआ। ये देखो मेरे हाथ, और ये तुम्हारे सामने जुड़े हैं फारिस। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोली, ताकि उनका खुराफाती जहन उनकी जानिब से हट जाए, जिनकी तमाम बातें उसके निकाह से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी, और उसका दिल हमेशा की तरह आखिरी हद तक खराब हो जाता था। वो जामिया सुकून लेने आई थी, मगर यहाँ वो घर से भी ज्यादा मरियल अंदाज में घूम रही थी, और ये सब इन तीन नमूनों की बदौलत था। कौन कह सकता था कि उनकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी? फारिस ने एकदम पुरसोच निगाहों से उसकी जानिब देखा। वैसे अफीफा, क्या तुम्हें शौक है सौतन लाने का? फारिस दूर बैठे कोमल और सद्दाम को एक नजर देखते सोचने वाले अंदाज में बोला, जो एक दूसरे में गुम ना जाने कौन से राजो न्याज करने में मसरूफ थे। अफीफा ने जब से गहरा सांस भरा, और ना उसकी बात पर बस नहीं चल रहा था कि फारिस का मुंह सुझा देती। जिस मुंह से उसने इतनी बकवास बात की थी, उसमें खश्म की निगाहों से फारिस की जानिब देखा तो वो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब है कि तैयारियां शुरू कर दो। ऐसा करना कि अपना निकाह वाला जोड़ा ही पहन लेना, क्योंकि तुम्हारा बंदा यानी कि हस्बैंड साहब एक नई बीवी को लाने के लिए जोरों शोर से तैयार हैं। तुम कुछ बोल तो सकती नहीं, डंके की चोट पर कम से कम तैयारियां ही कर लेना। पता लगना चाहिए सबको कि तुम सद्दाम आफंदी की पहली बीवी हो। सारे शाने उचकाते बेनियाजी से पता नहीं क्या वो शाने उचकाते बेनियाजी से बोला। प्रीसा ने तासुब से उसकी जानिब देखा और एक निगाह अपने भाई की जानिब उठाई थी, जिसका रवैया पिछले कुछ दिनों से मुकम्मल तौर पर बदल गया था। कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उससे छिनता जा रहा है। आखिर में वो खाली दामन रह जाएगी। वैसे अगर तुम्हारा दिल कुछ कहने पर आमादा हो तो मुझे जरूर कह देना, मैं उसकी समातों तक जरूर पैगाम पहुंचा दूंगा। मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। फारिस उसका मसनूई हमदर्द बंदे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट समेत बोला। प्रीसा ने उसे आंखें दिखाते खामोश रहने का इशारा किया था, क्योंकि अफीफा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था, जिससे कुछ बाद नहीं था कि यहीं फट जाता। इर्तिजा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में फारिस की जानिब देखा। मुख्तसरन ये सद्दाम से एक और चमाट खाना चाहता है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि तू चुपेड़े खाने के लिए ही पैदा हुआ है मेरे भाई। साला तेरा चेहरा ही ऐसा है कि अगले बंदे को अपनी हाथों में खुजली होना शुरू हो जाती है। इर्तिजा तो मस्कुराना लहजे में बोलते उसे पेचो ताप खाने पर मजबूर कर गया। उसकी का ही असर था कि अफीफा तनफन करती कैफे की जानिब बढ़ गई और आंधी तूफान के माने उसके सामने से गुजरी थी। सद्दाम जो कोमल को मनाने में मसरूफ था, उसने चौंक कर निगाहें ऊपर की जानिब उठाई, मगर मुकाबिल खड़ी अफीफा को देखते वो नफरत से सर झटक गया। जवाब अफीफा एक मुस्कुराती निगाह उस पर डालते खामोशी से उसके अगले मेज पर पूरी शान से विराजमान हो गई। उसकी नजरअंदाजी पर सद्दाम ने इश्तियाल के आलम में जबड़े बेच दिए। बाकी सब जो होंको की मानिंद अफीफा की जानिब देख रहे थे, उसकी हिम्मत को दिल ही दिल में सराहते उसकी तकलीफ में मेज की जानिब बढ़े। फारिस ने आंखें मटकाते मजे से सद्दाम की जानिब देखा। कोमल का ध्यान भी ना चाहते हुए उन सबकी जानिब मबदूल हो चुका था। गुस्से की एक शदीद लहर उसके वजूद में दौड़ी थी, मगर फिल वक्त वो कुछ भी गलत बोलकर पूरे कैफे वालों को अपने पीछे नहीं पड़वाना चाहती थी, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से अखबर थी
तो उन दोनों के दरमियान तनाज़े में सब ने फारिस के ग्रुप का ही साथ देना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सद्दाम भाई जान, क्या हाल अहवाल है? बड़ी अजीब बात है भाई जान, बीवी बगल में है और आप गैर महरम को बाहों में लेकर घूम रहे हैं। शदीद हरामन हरामन भाई जान। इज्तनाबन इज्तनाबन। फारिस बाकायदा कानों को हाथ लगाते तौबा करने वाले अंदाज में बोला। सद्दाम ने खौफ से उसकी जानिब देखा, जिसकी बकवास एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। मैं यहाँ से जा रही हूँ सद्दाम, मेरे ख्याल में फारिस बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। कोमल दांत पीसकर उसे जताती, इससे कबल अपना बैग उठाकर उससे कबली बाहर की जानिब बढ़ती। सद्दाम ने एक ही जज्ब में उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली थी। उसने सटक कर नासमझी से सद्दाम की जानिब रुख फेरा, जो उसका हाथ सख्ती से थामे सपाट चेहरे समेत उनकी मेज की जानिब बढ़ रहा था। फरीसा ने उन्हें अपनी जानिब आते देख धड़कते दिल समेत अफीफा की जानिब देखा, जिसका चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून था और वो खामोशी से अपने नोट्स पर झुकी कुछ कर रही थी। सद्दाम ने एक जल्दी निगाह उस पर डाली और उसके हाथों से नोट्स खींचकर अपनी गिरफ्त में लिए। अफीफा ने नागवारी से उसकी जानिब देखा और एक नज़र उसके हाथ में मौजूद कोमल के हाथ पर डाली, जो ना जाने क्यों उसे अपने साथ लिए उसके सर पर सवार था। ये क्या हरकत है? वापस करें मुझे मेरे नोट्स और फजूल में मुझसे पंगा लेने से इज्तनाब करने, वरना शायद आप कल रात वाली और हाँ सुबह वाली दुर्गत भी भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, आपको ये डोज शायद रोजाना चाहिए और सुबह दोपहर शाम चाहिए तो मुझे कोई मसला नहीं है। वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते दिलकश मुस्कुराहट समेत बोली। सद्दाम की गिरफ्त कोमल के हाथ पर मजबूत हुई थी, जिसकी बदौलत वो कर्राह उठी। दर्द की एक शदीद लहर उसके वजूद में दौड़ी थी। क्या कर रहे हो सद्दाम? मुझे तकलीफ हो रही है। वो एक झटके में अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवाते हुए चटक कर बोली। सद्दाम हड़बड़ाकर होश की दुनिया में लौटा और सरल से उसका हाथ थामा था। अफसोस, मेरे पीछे लगकर कम से कम अपनी महबूबा को तकलीफ ना पहुंचाएं। वो तो मुस्कुराना लहजे में बोलती, लबों पर मचलती मुस्कुराहट वहीं रोक गई। कोमल ने घूरती निगाहों से उसकी जानिब देखा था। अलबत्ता बाकी सब उसकी बातों पर सदमाती कैफियत में उसकी जानिब देख रहे थे। तो बास्तगफार, मैं तो कभी शादी न करूं। इस सब के बाद भरी महफिल में बीवी जलील कर दे और मेरी इज्जत टके की भी ना रहे। नादी होश की दुनिया में लौटते अपने गालों को थपथपाते हुए बोला। फरीसा ने फकत हुंकारा भरने पर इत्तफाक किया। पहले बड़ी इज्जत है तुम्हारी, जो अब टकेगी जो रह जाएगी। उसके जाने का भी खौफ लाहक है। वो नाक मुचड़ाते हुए बोली। आदि का चेहरा उसकी बाल पर खिफत से सुर्ख पड़ गया। देखो इसे, ये है मेरी पसंद, जिसे मैं पसंद करता हूँ और जिसे शादी करूंगा, वो भी तुम्हारी निगाहों के सामने। मुझे हर चीज ब्रांडेड पसंद है, लोकल चीजों पर मैं मुंह लगाना पसंद नहीं करता। बस यही जताने आया था। वो खून आशाम निगाहों से उसे देखकर निहायत संजीदगी से बोला। हफीफा ने उसकी बात पर समझने वाले अंदाज में सर हिलाते सताइशी अंदाज में सरतापा उसका जायजा लिया, जो सब अब सद्दाम के इस कदर तलख अल्फाज पर गुस्से से अपनी जगह से खड़े हुए थे। सद्दाम, तू अब हद से। इससे कबल के फारिस नागवारी से उसे टोकता, हफीफा हाथ के इशारे से उसे रोक गई थी। जी जी, वही देख रही हूँ कि आप जैसे इंसान की पसंद इस जैसी लड़की ही हो सकती है। वो अहेड मिस्टर सद्दाम आफंदी, क्योंकि अब इससे शादी करना आपकी पसंद क्या, मोहब्बत नहीं, बल्कि मुझे दिखाने की खातिर आपका जुनून बन चुका है। और रही बात मेरी, तो मैं आपकी बेबसी का तमाशा देखने जरूर वहाँ मौजूद होंगी, मतलब कि आपकी शादी पर। वो लड़ने से बोलते उसके वजूद को आग की भट्टी में झोंक गई। उसके वजूद में गुस्से के भांपड़ से जलने लगे। एक इस लड़की की हाजिर जवाबी से वो अच्छा खासा तंग था। कोमल ने इस दौरान एक काटदार निगाह फरीसा पर डाली, जो अफीफा के कान में झुकी कुछ बोल रही थी। बदले की आग ने उसके सीने में जोरों शोर से सर उठाया था। उन सब ने एक सेकंड में उसके वजूद की धज्जियां उधेड़ दी थी। सिर्फ इस फरीसा की बदौलत आज वो इस हाल में थी। इस फरीसा की बदौलत ही तो ये सब काम हुआ था। वो जब से गहरे गहरे सांस भरती, लंबे लंबे डग भरती बाहर की जानिब बढ़ गई। सद्दाम ने काटदार निगाह उन सब पर डालकर उन सब पे डालते उनकी तकलीफ में भागा था। कोमल, प्लीज लिसन यार, उन सबकी बातों को जहन पर सवार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मुझसे गर्ज होना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी बात? सद्दाम उसकी कलाई थामते समझाने वाले अंदाज में बोला। कोमल ने अजीब से अंदाज में उसकी जानिब देखा और उसी में डूबते उन सबसे बेइज्जत होती रहूं। सद्दाम, बहुत से इज्जतदार घरानों के रिश्ते मेरे घर में मौजूद हैं, जो अभी तक बाबा की पेंडिंग लिस्ट में है। वो गैस के आलम में तड़क कर बोली और गुस्से से अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़वाते सहलाने लगी, जहाँ उसकी सख्त गिरफ्त की बदौलत सुर्ख पड़ चुकी थी। मेरी बात सुनो, हम करीबी कैफे या मॉल में चलते हैं, वही तफसील से बात होगी। मगर मेरी एक बात का यकीन रखो कि मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूंगा, क्योंकि मेरी पसंद सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मुझे किसी और से कोई गर्ज नहीं है। वो मुतजियाना अंदाज में उसे कायल करते उसे अपने पीछे आने का इशारा करते अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। कोमल ने मरियल अंदाज में कदम उसकी तकलीफ में बढ़ाते एक निगाह मोबाइल पर चलती वीडियो पर दौड़ाई थी। लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट जब दिखलाकर गायब हो गई। ये आपकी औलाद मेरी समझ से बालातर है, न जाने क्या क्या करती फिरती है। घर में सब उसकी राह तक रहे हैं, परेशानी सबके अंग अंग में समाई हुई है और उसे अपने सैर सपाटों से ही फुर्सत नहीं है। खान बाबा जब से घर लौटे थे, उनका पहला सवाल ही शहराम के मुतल्लिक था और जैसे ही बरेकता ने शहराम के मुतल्लिक उन्हें आगाह किया, उनका गुस्सा सवानेदे पर पहुंच गया। अच्छा बाबा जान, फिर तो इन्हीं सवालों के हकदार तो आप भी हैं, क्योंकि जब कल मैं घर लौटा था तो आप भी कहीं गायब थे। तो क्या मेरे इन्हीं सवालों का जवाब देंगे?
वो काटदार लबो लहजे में दहाड़ा। उसकी आवाज़ पर सबने चौंक कर हवेली के दाखिली दरवाजे की जानिब निगाह दौड़ाई थी, जहाँ शहराम के साथ सहम कर लगी परखा को देख बरीकता तो भागने वाले अंदाज में उसकी जानी बढ़ी थी, मगर उनके नजदीक आने से कबल ही शहराम की पुष्ट पर पनाह लेते उसकी चादर को मुट्ठियों में भेज गई थी। बरेख्ता ने नासमझी से भीगी निगाहें शहराम की जानिब उठाई तो वो नजरें चुरा गया। सब कुछ बताने की उसमें हिम्मत कहाँ थी। बरेख्ता ने ठटक कर तफसीली निगाहों से उसका जायजा लिया तो उनकी जीरक निगाहों से कुछ भी मख्फी नहीं रहा। उन्होंने तो बाकायदा अपना सीना ही पीट डाला। मेरी बच्ची लूट गई, बर्बाद कर दिया जालिमों ने, इसे नहीं बख्शा, उसे जीते जी मार दिया। वो गहरे गहरे सांस भरती धाड़े मार मार कर रो रही थी। उनकी बातों की बदौलत बगदार यूसुफजई ने खौफजदा निगाहों से परखा की जानिब देखा, जो किसी गैर मरेई नुक्ते पर नजरें जमाए खड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे मुमकिन है? तू पठानों की इज्जत पर कैसे हाथ डाल सकता है? वो धाड़ कर बोले, मगर उनके लहजे में पिन्हा खौफ सद्दाम को चौंकने पर मजबूर कर गया। उसने नासमझी से उनकी जानिब देखा, जो बेचैनी से अपने पूरे चेहरे पर हाथ फेर रहे थे। उनके शोर की आवाज़ सुनकर पश्मीने और गुंजा भी बाहर दालान में आ चुके थे। पश्मीने तो परखा को देख खुशी खुशी उसकी जानी बढ़ी, मगर जवाब में उसे खुद से घबराता देख मीना के लबों से जैसे किसी ने मुस्कुराहट नोच ली थी। ये ऐसे कैसे बर्ताव कर रही है? वो भीगी निगाहों से उसे देखते हकलाते हुए लहजे में बोली, मीने देख मेरी बच्ची इतनी छोटी सी है, कैसे बर्दाश्त किया होगा ये सब? कैसे बर्दाश्त किया होगा ये सब कुछ? किसी ने नहीं छोड़ा इसे, किसी ने भी नहीं। हमारी बच्ची को मार डाला उन्होंने। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर्रा गई। मीना और गुंजा उनकी बात पर बेयकीनी की कैफियत में साकित रह गईं। उनका सर खुद ब खुद नफी में हिला था। मोरे, उठे यहाँ से, ये वक्त खुद को हौसला खोने का नहीं है, हौसला देने का है, क्योंकि हमने ही इसे सहारा देना है और दोबारा जिंदगी की जानिब इसी उम्मीद पर लौटेगी ये मोरे। वो उनका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते समझाने वाले अंदाज में बोला। उसकी बातों का ही असर था कि वो सरस से आंसू पोंछती उनके सहारे से उठ खड़ी हुई। इस दौरान वक्तार यूसुफजई बिल्कुल खामोश तमाशाई बने अपनी जगह पर साकित खड़े थे। रेख्ता ने जूं ही परखा के शाने के गिर्द बाजू हुमाइल किया तो वो तड़प उठी। छोड़ो हमारे को, जाने दो, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मोरे, लाला, प्लीज हमारे को बचाओ ना, कहाँ हो सब? वो तकलीफ की शिद्दत से कराहते फूट फूट कर रो दी। उन सब ने अजियत से आंखें मींची थीं। चल हमारी बच्ची, हम तेरी मोरे ही तो हैं, आ जा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तू अपनी मोरे की आगोश में सो जा, कोई नहीं है। बरेख्ता उसे सीने में भेजती नरमी से बोलती उसे आराम करने लगी। उसकी आंखों में पहचान की रमक देख शहराम ने बाकायदा तशक्कुर भरा सांस खारिज किया और उसे अंदर ले जाने का इशारा किया था। उसे हैरत हुई थी कि खान बाबा ने एक बार भी उसके करीब आते उसे देखने की जुर्रत नहीं की थी, मगर फिर वक्त वो अपनी तमाम बेलगाम सोचों को झटक गया था। रुको, ये अंदर नहीं जाएगी। इससे कबल के वो अंदर की जानिब बढ़ते उनकी पाटदार आवाज़ पर सबने नासमझी से उनकी जानिब देखा और बता शहराम की आवाज़ बुरी तरह झंझना उठे। क्या मतलब बाबा जान, आपकी इस बात का वजाहत देना पसंद करेंगे आप? वह कहर बरसाते लहजे में ही गुर्राया। उन्होंने नागवारी से उसकी जानिब देखा। मैं तुम्हें अपनी बात का जवाब देने का पाबंद कतई नहीं हूँ, मगर हम इस घर में इसको रहने की इजाज़त कतई नहीं दे सकते। हमारी भी इस शहर में कोई साख है, इज्जत है, हम कैसे इसे फरामोश कर दें? हम ऐसा कतई नहीं होने दे सकते। हमने इतनी शिद्दत से दुआ की थी कि अगर ऐसा कुछ हो तो ये मरी हुई मिले। वो बड़बड़ाने वाले अंदाज में गोया हुए। शेराम उनकी बात दरमियान में ही काटते दहाड़ा था। आंखें तब के मारे लहू रंग हुई थी। बस करें बाबा जान, बस करें, मत गिराएं खुद को हमारी निगाहों में। अपनी औलाद की बाबत बोलने से पहले कुछ तो सोच लेते। कम से कम मरने की दुआ, या खुदाया, अगर आप इसे गैरत कायम रखने का वसीला मानते हैं ना, तो बेहिसी की इंतहा है। आपसे ज्यादा जालिम इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। अफसोस होता है मुझे खुद को आपका बेटा कहते हुए। वो तमाम लिहाज बुलाए ताक रखते हुए नफरत भरे लहजे में पुकारा। वफादार यूसुफजई जहर आलूद निगाहों से उसे देखते रह गए। बरेख्ता अभी तक बेयकीन सी उनकी बातों की कैद में थी। उसे अब समझ आया था कि बेटियों का सच में कोई ठिकाना नहीं होता। कल तक जो बाप उस पर जान छिड़कता था, आज वही उसके मरने की दुआ मांग रहा था। मोरे, आप इसे लेकर कमरे में जाएं। कोई कुछ कहेगा तो उससे निपटना मुझे अच्छे से आता है, फिर मैं शायद रिश्तों का तकद्दुस भी फरामोश कर जाऊं। वो जहर खुद लहजे में उन्हें बावर करवाने वाले अंदाज में बोला तो वो पथरीले तासरात समेत उन्हें अंदर जाने का इशारा किया था। वो लड़खड़ाते कदमों समेत उसके कमरे की जानिब बढ़ गई। अब समझ गया हूँ मैं कि उसकी गुमशुदगी में इस कदर पुरसुकून क्यों थे आप, क्यों नहीं उसे तलाश कर रहे थे। आप तो उसे बद्दुआएं देने में मसरूफ थे ना। मेरी बात कान खोल कर सुन लें आप, अगर परखा के सामने ऐसी वैसी कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो शहादत की उंगली उठाते सर्द मोहरी से उन्हें जताने वाले अंदाज में बोला और लंबे लंबे डग बढ़ते बाहर की जानिब बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो तुम? उनकी बर्जस्ता बात पर शहराम ने तो मुस्कुराना मुस्कुराहट समेत उनकी जानिब देखा था। इसके गुनाहगार को सजा दिलवाने, और यकीन करें मैं अपने हाथों से उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। उन्हें क्या, ऐसी ही इस कबीले में जो भी ऐसी हरकत करेगा वो शहराम खान के अताब का निशाना बनेगा। आप एक बेहिस बाप हो सकते हैं, मगर मैं एक बेहिस भाई नहीं बन सकता। जब तक परखा के कदमों में उसकी निगाहों के सामने उन सबका सीना गोलियों से चलनी करते कुत्तों के आगे ना डाल दूं, मुझे सुकून मुयसर नहीं आएगा।
वो खुरदरे लहजे में बोलते तनफन करता वहां बाहर की जानिब बढ़ गया। वफादार का चेहरा उसकी बातों पर रट्टे के मानी सफेद पड़ गया। उन्होंने दोनों हाथ पुष्प पर बांधते पुरसोच निगाहों से परखा के दरवाजे को देखा था। वो ऐसे उसे इस हवेली में कतई नहीं रख सकते थे। इस तरह उनकी इज्जत पर बात आने थी। चाहे वो उनकी बेटी थी, मगर लोग तो ऐसी बेटियों को जीते जी मार देते थे, क्योंकि उनकी इज्जत जाने का खदशा होता था। उनका दिमाग भी अब मुसलसल किसी गहरी सोच में गलता था। सदाम और कोमल मैकडॉनल्ड में मौजूद अपना ऑर्डर लिखवाने के बाद एतराफ का जायजा लेने में मसरूफ थे। मान कुछ याद आता ही सदाम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। तो मुझे कुछ बताने वाली थी शायद। उसने गाड़ी में हुई बात का हवाला दिया, जहाँ वह उसे कुछ बताते बताते थम गई थी। हाँ नहीं, अब रहने दो, फजूल में बात को तवारत बख्शना। वो मेज पर रखे उसके हाथ पर अपना मोमी हाथ रखते नरम मुस्कुराहट समेत बोली, मगर वो जवाब में बजीद रहा। और यही तो कोमल चाहती थी, तभी गला खनकार उठी। तुम क्यों एक बात के पीछे पड़ गए हो सद्दाम? होल्ड ऑन, जाने भी दो, अब इन बातों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, वो मुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। सदाम को यकलक परेशानी ने आन घेरा। न जाने ऐसी क्या बात थी। उसने कोमल का हाथ दबाते उसे अपनी बात जारी रखने की तंबीह की थी। सदाम, वो दरअसल बात फरीसा के मुतालिक है। तुम ऐसा मत समझना कि मैं शायद उसे पसंद नहीं करती। नहीं, वो मुझे दिलो जान से करीब तर है, क्योंकि वो तुमसे मुंसलिक है। मगर उसकी एक बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। मैं तुम्हें बताना चाहती तो नहीं थी, मगर अब तुमने ही इसरार किया है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ये बात उसे अच्छे से अकबर थी। फिर भी वो अफीफा को हमारे दरमियान में ले आई। भला एक इंसान जब खुद इस दोराहे से गुजर रहा हो, वो सब कुछ उस पर बीत रहा हो, मोहब्बत में बिछड़ने का दुख क्या होता है वो जानता हो, तो उसे कम से कम ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। उसे हमारे एहसासात की कदर करनी चाहिए थी। वो खोए खोए अंदाज में भीगे लहजे में गोया हुई। सद्दाम, जो संजीदगी से उसकी बात मुलाहिजा कर रहा था, उसकी आखिरी बात पर जी जान से झटका। मैं कुछ समझा नहीं प्रीसा। मोहब्बत? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं उससे नाराज हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि प्रीसा मुझसे कुछ नहीं छुपाती। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें शायद नहीं, यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। उसे समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ। कोमल उसकी बात पर दांत पीस से पेशोताब खाती रह गई। तुम्हारी बहन है, इसीलिए तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। खैर छोड़ो, मेरे पास सबूत भी था, मगर अब तुम्हें जब यकीन ही नहीं करना तो दिखाने का फायदा। वैसे भी मैं अपनी बदौलत किसी में फूट नहीं डलवाना चाहती। वो गहरा सांस भरते मताने से बोलते बात को टाल गई। सदाम ने निहायत संजीदगी से उसकी जानिब देखा था। इस दौरान वो ऑर्डर लेने चल दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद उसकी वापसी हुई थी। वीडियोस दिखाओ मुझे जिस मुतालिक तुम बात कर रही हो। वो उसकी जानिब अपनी चौड़ी हथेली फैलाते स्पाट लहजे में बोला। कोमल ने नफी में सर हिलाना चाहा, मगर उसकी तंबीही निगाहें खुद पर महसूस करते वो डूबते दिल समेत वो वीडियो चलाते सद्दाम की जानिब बढ़ा गई। सद्दाम ने अपनी तमाम तर तवज्जो मोबाइल पर चलती वीडियो की जानिब मबजूल करवा दी। जो जो वो वीडियो देखता जा रहा था, उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। आंखों में बेयकीनी सी दर आई। उसने सफेद पड़ते चेहरे समेत एक बार फिर वो वीडियो चलाई थी, जो ट्रिप की थी, जहाँ प्रीसा और शहराम। उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाह रहा था। कोमल ने दिल ही दिल में मुस्कुराते उसके चेहरे के तासुरात जांचे थे, जो गुजरते वक्त के साथ बिगड़ते ही चले जा रहे थे। उसकी लहू रंग आंखें देखकर एक लम्हे के लिए कोमल का दिल भी धक से रह गया था। वो सर के बालों को मुट्ठी में भेजे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। समातों में वीडियो में चलने वाली परीसा की बातें गड़बड़ हो रही थी। जहन में वो मंजर किसी फिल्म की मानी चल रहा था। कोमल, तुम ये मेरे एटीएम कार्ड रखो और उबर करा कर चली जाना, मुझे घर जाना है। वो उसकी जानिब अपना कार्ड उछालते भागने वाले अंदाज में बाहर पार्किंग की जानिब बढ़ा था। कनपट्टी की रगें आखिरी हद तक खुली हुई थी। न जाने अब उसका ये गुस्सा आफंदी हाउस के मकीनों पर क्या क्या ढाने वाला था। मेरी ख्वाहिशात का कत्ल करके खुद तुम डंके की चोट पर मेरे ही दोस्त के सामने अपनी मोहब्बत का परचम लहरा रही हो परीसा। उसकी ग्रिप स्टीयरिंग पर मजबूत हुई थी। वो सबकी इंतहाओं पर तकरीबन रैश ड्राइविंग करते आफंदी हाउस की जानिब रवाना हुआ था। तकरीबन 10 मिनट में उसकी गाड़ी के पहिए घर के पोर्च में चिड़चिड़ाए थे। उसने अजियत से हाथ का मुक्का बनाते स्टीयरिंग पर मारा और गाड़ी लॉक करते तेज कदमों से अंदर की जानिब बढ़ा था। परीसा, परीसा, कहाँ हो तुम? उसकी तेज आवाज जो ही लाउंज में गूंजी, आफिया बेगम परेशानी के आलम में हाँफती हाँफती बाहर निकली। उसे इश्तियाल के आलम में जीने चढ़ते देखकर उन्होंने अफीफा की जानिब देखा, जो खुद भी हैरत से गैर मामूली शोर सुन के कमरे से बाहर निकल आई थी। क्या हुआ आंटी? ये आवाज कैसी थी? वो दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते नासमझी से गोया हुई, जो जवाबन वो मुख्तसरन सद्दाम का रवैया उसे बताते अपनी पेशानी से हिलाने लगी। कुछ ही देर में उन्हें रेलिंग से नीचे उतरते दिखाई दिए। परीसा की हालत देख आफिया और अफीफा तड़प कर उसकी जानिब बढ़ी, जो उसके साथ ही बेदर्दी से खींची चली आ रही थी। भाई, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? परीसा अपनी नाजुक कलाई को उसकी सख्त ग्रिप में महसूस करते बुरी तरह रोते हुए नासमझी से गोया हुई, जिसमें तकलीफ सी उठ रही थी, क्योंकि उसके साथ चलने से भी वो उसके साथ ही खींची चली जा रही थी। वहीं जहाँ तुम्हें बहुत पहले होना चाहिए था। तुम हम में से किसी की भी मोहब्बत और एतबार के लायक नहीं हो। और इश्तियाल के आलम में हलक के बल धाड़ा था। परीसा ने पटी पटी निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिसके माथे की रगें उबर कर फटने के करीब थी। जबड़े बुरी तरह भींचे हुए थे।
भाई मैं समझी नहीं, प्लीज मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द। इससे पहले कि वो भराए लहजे में अपनी बात मुकम्मल करती, सद्दाम ने एक झटके से उसे आफंदी हाउस के दरवाजे के पास लाकर छोड़ा था। वो बुरी तरह लड़खड़ाते मुंह के बल जमीन बोस हुई थी। तकलीफ की शिद्दत से उसके लबों से एक कराह निकली थी। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ परीसा, क्योंकि तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारी जैसी बेहया लड़की को अपनी बहन तस्लीम नहीं कर सकता। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? वो शहादत की उंगली उठाते आंखों में नफरत की चिंगारियां लिए एक एक लफ्ज चबा चबा कर पुकारा। प्रीसा के हलक में गिल्टी उभर कर मासूम हुई, आंखें पल भर में आंसुओं से लबरेज हुई थी। इतना गंदा लफ्ज अपने भाई के लबों से सुनकर उसकी आती जाती सांसें भी लड़खड़ाई थी। बाकी सब फक चेहरे समेत उसकी जानिब देख रहे थे। जो कभी उसे लाडो लाडो कहा करता था, आज उसी लाडो में पली बहन को बुरी तरह धुतकार रहा था, घर से जाने का बोल रहा था। अफीफा ने नागवारी से उसकी जानिब देखा और रोती हुई आफिया को सीने में भेजा था। दिल ही दिल में वो आदिल के जल्दी घर आने के लिए दुआ गो थी। सद्दाम, छोड़ो उसे, वो तुम्हारी बहन है। आफिया रोते रोते उसके आगे हाथ जोड़ गई। प्रीसा ने नम निगाहों से आफिया की जानिब देखा। अफीफा इस दौरान सुन खामोश खड़ी तमाशाई थी। भाई ऐसा मत कहें प्लीज, मैंने कुछ। वो नफी में सर हिलाती अपने वजूद में उठती टीसों को बर्दाश्त करते अपनी जगह से उठी और उसका हाथ थामती। सद्दाम ने बुरी तरह उसका हाथ झटक दिया। चेहरे पर नागवारी का अंसर साफ नुमाया था। मुझे आइंदा भाई मत कहना, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मेरे रिश्ते को खुद के साथ जोड़कर पामाल मत करो। हमारी इज्जत का ही ख्याल नहीं कर सकी, तुम अपनी करतूतों के पीछे हमारा नाम भी खराब करने जा रही थी। तुम इस घर से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरा जब टूट जाए, मैं तुम्हें जान से मार डालूं। उसकी बात पर वो लहू रंग आंखों समेत उसके बालों को झटका देते हुए गुर्राया। अलीसा के चेहरे का रंग लट्ठे की मानी सफेद पड़ गया। उसे खाली खाली निगाहों से सद्दाम की जानिब देखा, जिसे न जाने एकदम से क्या हो गया था। वो समझने से कासिर थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आंसू तवातर उसके गालों पर बह रहे थे। उसने अपने कपकपाते लबों को आपस में पेवस करते उसे थामना चाहा। भाई नहीं। इसे कबल के वो अपनी बात मुकम्मल करती, लाउंज की फिजा में एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंजी थी, जिसकी बदौलत उसका सर साथ ही लगे पिलर से बुरी तरह टकराया था। उसके लबों से दिलखराश चीख बुलंद हुई, साथ ही चारों तरफ में सुकून छा गया। आफिया ने तड़प कर उसकी जानिब जाना चाहा, मगर सद्दाम ने गुस्से से गुटाते उन्हें वहीं टोक दिया। उन्होंने बेरान निगाहों से सद्दाम की जानिब देखा, जो उसकी छोटी सी छोटी चोट पर तड़प उठता था। वो कैसे बेहिस बना हुआ था। मामा, एक कदम भी आगे नहीं। वो अपनी सुर्ख होती आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते नफी में सर हिलाते हुए बोला। अपने चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ से फरीसा का गाल तक सनसना उठा था। उसने साकित निगाहों से सद्दाम की जानिब देखा। तुम गलत कर रहे हो सद्दाम, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे बाबा को मालूम हुआ, वो तुमसे ताल्लुक करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तुम परी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, उसकी माँ जिंदा है अभी। अफीफा उसे तंबीह करने वाले अंदाज में गोया हुई। सद्दाम ने तो मुस्कुराना अंदाज में मुस्कुराते नफी में सर हिलाया था। फरीसा दम साधे चेहरा झुकाए खड़ी थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी मोहब्बत रुसवाई की सूरत में उसके मुंह पर तमांचे की तरह पड़ेगी। उसका तो सब कुछ लुट गया था। बाबा को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब उनके सामने भी इसकी असलियत आएगी। मुझे मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का बोल रहे थे, और खुद मेरी ही दोस्त के साथ। तो बोलते बोलते थम कर आंखें सख्ती से मेज गया और सर के बालों को मुट्ठी में भेज गया था। और ईसा ने अदियत से आंखें मींची। अलबत्ता अफीफा का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। वो यकटिक सद्दाम की जानिब भी देख रही थी। भाई बस करें मेरे किरदार पर कीचड़ उछालना। बहन हूँ मैं आपकी, एक भाई होकर कैसे आप ऐसी हरकत कर सकते हैं? हाँ, मैंने मोहब्बत की है, मगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मगर आप मुसलसल मेरी बगैर सुने मुझे गंदा कर रहे हैं। भूल गए हैं कि अपनी लाडो को, जिसे आप लाडो लाडो कहते नहीं सकते थे, आज उसी के खिलाफ बोलते हुए आपको जरा भी अफसोस नहीं हो रहा? इस कदर बदगुमानी कि आप रिश्तों का फर्क ही भुला बैठे हैं। वो अपना जब्त खोते हुए चीख उठी थी और दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। आफिया ने बामुश्किल अपनी सिसकी दबाई। सद्दाम ने जहरकुन निगाहों से उसकी जानिब देखा। अफीफा ने उसे देखकर नफी में सर हिलाया, जैसे उसे रोकना चाह रही हो, मगर वो तो जैसे किसी की सुनने की हालत में ही नहीं थी। ये देख रही हैं आप मामा, ये देख रही हैं? इसका पूरा पुरएतमाद लहजा, जैसे सामने खड़े भाई का लिहाज ही नहीं है। तुम अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अपनी निगाहों के सामने देख मैं खुद पर जब्त हो रहा हूँ। ये ना हो मैं कुछ गलत कर दूं जिसका पछतावा ताउम्र मेरे साथ रहे, किसी नासूर की माने। वो शदीद इश्तियाल के आलम में गुर्रा उठा। फरीसा ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। अलबत्ता अफीफा के चेहरे पर इस सारे अरसे में पहली बार नागवारी का तासुर फैला था। फरीसा ने खुद पर काबू पाते सख्ती से मुट्ठियों को भेजा। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से कहीं भी, क्योंकि ये आपसे कबल मेरे बाप का घर है, और बाप अपनी बेटियों को रुसवा नहीं करते, यूं घरों से बेदखल नहीं करते। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। बाबा कहाँ हैं आप? प्लीज आ जाएं। वो रोते रोते तकलीफ के आलम में दिल ही दिल में आदिल को मुखातिब कर बैठी और खुद में हिम्मत मुजतमा करते घर के अंदर कदम रखा था। ये सब करते दिल बुरी तरह लरज रहा था, क्योंकि सद्दाम से कोई बैद नहीं था कि एक बार फिर हाथ उठाने से गुरेज ना करता। उसे हैरत के साथ साथ दुख भी हुआ था अफीफा की मुस्तकिल खामोशी से। ज्यादा ना सही, वो कुछ ना कुछ तो उसके हक में बोल सकती थी, मगर उसकी खामोशी उसे बुरी तरह चुभी थी। आज उसका दिल रेजा रेजा हो गया था। आफिया को देखते उसने बामुश्किल अपनी सिसकी दबाई, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर उसके
उसे अपने साथ लगाया था तो वो मजीद शिद्दतों से रोते एक बार फिर बिखर गई थी। बस मेरा बच्चा, रोते नहीं। आफिया उसे पुचकारते हुए उसके गालों पर बहने वाले आंसुओं को साफ करने लगी। प्रीसा का पूरा वजूद मुसलसल रोने की बदौलत हिचकोले खा रहा था। मामा, मैंने कुछ गलत नहीं। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा। वो उसकी बात दरमियान में काटते उसे सीने में भेजते बोली जो ना जाने किस राह की मुसाफिर बन गई थी। उन सबकी लाडली औलाद जिसे कभी जरा सी खराश भी आती थी तो सब तड़प उठते थे और आज यूं सबके सामने अपनी पाकीज़गी की गवाहियां दे रही थी। क्या इससे भी बुरा दिन उन सबके लिए कोई हो सकता था? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। किया है तुमने गलत। तुम गलत हो। मेरी मोहब्बत कत्ल की है तुमने। मामा, ये जानते हुए भी कि मैं कोमल से मोहब्बत करता हूँ, मगर फिर भी इसने जानते बूझते मुझे इस लड़की से जोड़ा जो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, जिससे मैं नफरत करता था। मैंने इनकार किया था, मगर ये गिड़गिड़ाई थी मेरे सामने कि मेरी दोस्त को अपना लो, उससे निकाह कर लो, ताकि वो उस यासिन नामी बुढ़ा से निजात पा सके। मैं नहीं करना चाहता था ये सब। आप सबको ये तो दिखाई दे रही है, इसका गम भी दिख रहा है, इसके रोने पर तकलीफ भी उठ रही है, मगर मेरी तकलीफ का क्या मामा? क्या मैं आप सबके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? बाबा ने उस दिन मुझे सुनना भी गवारा नहीं किया। और आप, जब इसका मुझसे निकाह हो रहा था, उस वक्त आप भी खामोश थी। आप क्यों नहीं बोली मेरे हक में? आपको कम से कम बोलना चाहिए था। एक माँ को बोलना चाहिए था। वो भीगे लहजे में खुदअज़ियती की कैफियत में बोला। इतने दिनों का गुबार था जो आज आज इस सूरत में बह निकला था। अफीफा ने तलख मुस्कुराहट समेत उसकी जानिब देखा और एक बेयकीन निगाह फरीसा पर डाली थी जो आफिया के पहलू में बेदम बिल्कुल खामोशी थी। उसका दिल धक से रह गया। आफिया ने नफी में सर हिलाते उसे मजीद बोलने से रोकना चाहा, मगर वो भी जैसे ऐसा कुछ बोलने की कसम खाकर आया था। नहीं, आज मैं कम से कम खामोश नहीं होऊंगा। इसकी दोस्त को भी तो मालूम पड़े कि इसकी दोस्त और जान से अजीज दोस्त जो है वो किसी सूरत में इसे बचाना चाह रही थी। तो सुनो, तुम कान खोल कर। ये चाहती थी कि तुम्हारा निकाह मुझसे हो जाए और जैसे मैं उस यासीन नामी शख्स से तुम्हारी जान छूटे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं। जिसके साथ घर बसाना चाहूँ बसा सकता हूँ। वैसे वो पेशकश अच्छी थी, मगर अब तो तुम ना जाने मेरे किस गुनाह की बदौलत मेरे सर पर बोझ बनकर नाजिल हो गई हो। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोलते ब्रंदो बाग कहका लगाकर हंस दिया। फरीसा ने तड़प कर अफीफा की जानिब देखा और एक निगाह सदाम पर डाली जो ना जाने क्यों उस पर ये सब बातें वाज़ेह कर रहा था। खुदारा भाई, आप तो बदल गए हैं, मगर मुझसे मेरे मजीद रिश्ते मत छीने। मैं उनके जाने से ही मर जाऊंगी। वो उसके पैरों में गिरते हुए बोली। जिस भाई पर वो जान वारते नहीं सकती थी, उसी ने आज उसे ये दिन दिखाया था। कैसे बुरी भी हो सकती थी जिंदगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो अफीफा के साथ कम से कम अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती थी। सदाम ने सख्ती से उसका बाजू थामते अपने मुकाबिल किया और उसे खींचते हुए एक बार फिर बाहर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अफीफा खाली खाली निगाहों से उनकी पुश्त को निगाहों से ओझल होता देख रही थी। आफिया हाँफते हाँफते उसके पीछे भागी, मगर उतनी ही देर में वो बेदर्दी से उसे बाहर की जानिब धकेल चुका था। इससे कबल के वो बुरी तरह मुंह के बल जमीन बोस होती, दो मजबूत बाजुओं ने उसे थामते सहारा दिया था। फरीसा के लबों से झटका लगने की बदौलत एक कराह से निकली थी। उसके बरक्स अफीफा के चेहरे पर जैसे जिंदगी की रमक दौड़ गई और अफीफा को तो इंतजार ही होने का था। परी, उनकी सरसराती आवाज पर फरीसा ने भीगी निगाहें जो ही ऊपर की जानिब उठाई, मुकाबले खड़े आदिल को देखकर उसकी निगाहों से पे दर पे आंसू गालों पर बहते चले गए। बाबा, वो बेयकीनी की कैफियत में उनके सीने पर हाथ रखती उन्हें टटोलती एक झटके में उनके सीने से लगती गारों की तार रो दी थी। उन्होंने ललच से दिल समेत सदाम की जानिब देखा, जिसका चेहरा आखिरी हद तक सुर्ख पड़ रहा था। वहां से होते हुए उनकी निगाह फरीसा की पेशानी पर लगे खून की जानिब उठी और उनकी आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें सी भर दी थी। सद्दाम, उनकी आवाज इतनी हल्की थी कि वो मुश्किल ही सुन पाया। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खुद से अलग किया था। ये सब, उनकी जुबान उनका साथ देने से इनकारी थी। अफीफा ने खामोशी से चेहरा झुका लिया। न जाने वो सब जानने के बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या होने वाला था। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैं बुरी नहीं हूँ। उनका हाथ थामते जैसे उन्हें यकीन दिला रही थी। सद्दाम ने तल्खी से हंसते सर झटका। मैं बताता हूँ बाबा आपको कि ये किस कदर अच्छी है। ये इतनी अच्छी है कि मेरे दोस्त से मोहब्बत करते डंके की चोट पर उसके सामने इजहार करती है। ये इतनी अच्छी है, वो मुसलसल इसके जज्बों से इनकारी है, मगर ये उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि नहीं, इसे अपना लिया जाए। इतनी अच्छी है ये बाबा, जो अपनी तमाम शर्म भुलाए बैठी है। हमारी गैरत लुटाने जा रही थी। ये इससे बड़ा बेशरम। इससे कबल के वो तमाम लिहाज बुलाए ताक रखते अपनी बात मुकम्मल करता, अपने मुंह पर पड़ने वाले सन्नाटेदार थप्पड़ के बदौलत उसका गाल बुरी तरह सनसना उठा। वो बेयकीनी की कैफियत में बुरी तरह लड़खड़ाया था। सबने हैरत की ज्यादती से फटी निगाहों समेत मुंह पर हाथ जमाया और पग चेहरे समेत अफीफा की जानिब देखा, जो गहरे गहरे सांस भरते अपने आंसुओं पर जब्त किए उसके मुकाबिल खड़ी थी। एक लफ्ज मजीद और नहीं, एक लफ्ज भी नहीं, वरना मैं तमाम लिहाज बुलाए ताक रख दूंगी मिस्टर सदाम आफंदी कि आपके साथ मेरा रिश्ता क्या है। मैं समझती थी कि ये सब मुझसे नफरत के बदौलत आपके साथ ऐसा रवैया रखते हैं, मगर मेरा भी क्या कसूर। जिस तरह आप जबरदस्ती इस बंधन में बंध रहे हैं, वैसे ही मेरे लिए भी ये सब कुछ बिल्कुल गैर मुतवक्का था। इस मौके पर गुस्सा भी काबू किया जा सकता है, मगर आप गुस्से में सब कुछ भुला देते हैं।
सब्र से भी काम लिया जाता है ऐसी सूरत हाल में। मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी मगर आपने ही मजबूर किया है। और शहादत की उंगली उठाते तंबीह करने वाले अंदाज में फुंकारी, चेहरे पर किसी भी किस्म की नरमी का शाइबा तक नहीं था। सदाम उसके थप्पड़ पर बिफरते इससे कबल कि उसकी जानी बढ़ता आदिल की धार पर वहीं थमसा गया। वहां से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना सद्दाम, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। वो नफरत में डूबे लहजे में गोया हुए। उसका थप्पड़ खाने के बदौलत अभी तक गाल के साथ साथ दिल भी जल रहा था। उस चट्टान भर की लड़की ने उस पर हाथ उठाने की जुर्रत की थी। बाबा नहीं, आप मत मारिएगा मुझे। परीसा खौफजदा अंदाज में गाल पर हाथ रखते 2 कदम पीछे हुई थी। आदिल ने तरहम भरी निगाहों से उसे देखते उसे अपने सीने में भेजा था। दिल तो मेरा शिद्दत से चाह रहा है कि 2 मजीद लगाऊं आप जैसे भाई पर। यकीन करें, मेरा ऐसा भाई होता तो उसके मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। इतनी नफरत होती। उसके मुंह पर थूकना नहीं पसंद ना करती। ऐसे भी अभी वैसी ही नफरत है मुझे आप जैसे शोहर से हो रही है। अफसोस तो दूर की बात, रोना आ रहा है मुझे ये सोच सोच कर कि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। आप जैसे तो मर्द के कहलाने के लायक नहीं होते। क्या अपनी बहनों को यूं किसी गैर मर्द से मोहब्बत से रोकने के बाद आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे मर्द हैं? आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, है ना? तो फिर वही अहकाम आप पर क्यों नहीं लागू होते? ऐसे मर्द सिर्फ घटिया होते हैं जो खुद बीवी की मौजूदगी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ पूरी जामिया में घूमते हैं। और बहन के वक्त आपकी गैरत जाग जाती है। वाह सद्दाम साहब, आपकी गैरत को सलाम। इस वक्त गैरत नहीं जागती आपकी जब उस कोमल के साथ चिपक कर बैठते हैं। अरे नहीं, वो तो आपके लिए फख्र की बात होगी, क्योंकि उससे तो आपकी मर्दानगी वाज़ेह होती है। क्यों अंकल, ठीक बोल रही हूँ मैं ना? तभी तो ये मर्द कहलाए जाएंगे। वो सर्द लहजे में उसकी समातों में सूर फूंकी एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। और साथ ही आदिल को भी बाद में घसीटा था जो अफीफा की बात पर बेयकीन से थे। ये अभी भी कोमल के साथ? उन्होंने सदमाती कैफियत में अफीफा की जानिब देखा जो उनकी बात पर तल्खी से मुस्कुरा दी थी। कोमल के साथ नहीं, सिर्फ खूब अय्याशियां हो रही हैं अंकल, उन्हें मनाया जा रहा है, उन्हें शॉपिंग्स करवाई जा रही हैं। अरे मर्द जो हैं, कोई नहीं क्या कह सकता है, औरत होते तो अभी 100 जूतियां मुंह पर पड़ती। ऐसी सूरत हाल में तो औरत की भी जान लेना भी जायज है। अभी अगर मर्द होता तो ये कहकर टाल दिया जाता कि छोड़ो, मर्द है, इसको कुछ मत कहो। वो अजियत से बोलते आखिर में तमस्कुर से हंसती। कैसा महसूस कर रहे हैं आप जब सब आपके खिलाफ खड़े हों और आप पूरी महफिल में कोई एक अपना तलाश कर रहे हों मगर वो ढूंढने से भी न मिले? अच्छा ही महसूस कर रहे होंगे। अगर आप अच्छा भी नहीं महसूस कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। दिली खुशी हो रही है। हम दोनों में फूट डलवाना चाह रहे थे ना, हमारी दोस्ती खराब करवाना चाह रहे थे आप। मगर मेरी एक बात आप कान खोल कर सुन ले कि हमारी दोस्ती वक्त बढ़ने के साथ साथ मजबूत होगी, कम तो किसी सूरत नहीं होगी। वो जताने वाले लहजे में गोया हुई। अंकल, मैं माजरत चाहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, मगर मैं सिर्फ आप ही का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं जो भी बात करना चाहती थी वो आपके सामने और डंके की चोट पर करना चाहती थी। अगर प्रीसा ने शहराम सर को पसंद किया था तो इनसे इजहार भी कर दिया था। हाँ, उससे गलती हुई, चले गुनाह भी मान लेते हैं, मगर वो अपनी माँ के कहने पर पीछे भी हटी थी। अभी आप ही बोल रहे थे ना कि मोहब्बत से दस्तबरदार होने का दुख कैसा होता है, कोई नहीं समझ सकता। तो पूछे इससे कैसा होता है? वो दुख कभी अपनी बहन से मोहब्बत से बात की हो तो उसे एतमाद में लिया हो तो कुछ मालूम होना, या अपनी इश्क माशूकियों से फुर्सत मुयसर हो तो उस वक्त ना। अंकल, आप प्रीसा को कुछ भी कहें, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मुझे बुरा लगेगा, मगर ये शख्स कम अज कम ये हक नहीं रखता कि खुद को टोक कर खुद उसी राह का कि दूसरों को टोक कर खुद उसी राह का मुसाफिर हो। इसलिए कहते हैं कि किसी को कुछ भी जताने से कबल अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए, वरना किसी के लिए गड़ा खोदोगे तो उस मुशक्कत में खुद भी उसी गड़े में जा गिरोगे। वो खुश्क लोगों पर जुबान फिरते भीगे लहजे में बाबर करवाने वाले अंदाज में बोली। परीसा की हिचकी बुलंद हुई थी। परी, आपने मुझे क्यों नहीं बाबत बताया? शहरान और आप? वो परेशानी से अपनी पेशानी मसलने लगे। परीसा ने सहम कर उनकी जानिब देखा। बाबा, मैं कुछ नहीं करूंगी, पक्का। मैं आपकी इज्जत पर आंच भी नहीं आने दूंगी। मैंने मामा से वादा किया है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। उनका हाथ थामते उन्हें यकीन बख्श रही थी। उसके बरक्स आदिल की निगाहें आसिया के चेहरे पर जमी थी। आसिया, आपने भी कोई जिक्र नहीं किया, वो इश्तियाल के आलम में बोले। उन्होंने घबरा कर चेहरा झुका लिया, अलबत्ता सदाम का सर हनूर झुका हुआ था। मैं जानती थी ये बात जानने के बाद घर का माहौल इस कदर गर्म हो जाएगा, इसीलिए। क्या गर्म हो जाएगा माहौल? मैं पूरी बात समझ रहा हूँ कि इसकी गलती है, मेरी बेटी ने गलती की है जिस पर उसने वक्त रहते काबू भी पाया है। कोई गुनाह नहीं किया था जिसकी सजा इस कदर भयानक होती। आज मैं अपनी तबीयत खराबी की बदौलत अगर घर न आता तो मेरी बेटी यूं ही सड़कों पर दर बदर हो रही होती। औलाद है वो मेरी, लावारिस नहीं है वो। समझ आई मेरी बात? और तुम्हें मेरी बात अब तक समझ आ जानी चाहिए, वरना मैं कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। वो गैस के आलम में सदाम का बाजू झटकते सख्त लहजे में गरजे। अफीफा ने आगे बढ़ते फरीसा को अपने बाजों के हिसार में लिया था। इसे तुम मेरा एहसान मत समझना, बस दोस्ती का हक समझना जो मैं मरते दम तक निभाऊंगी परी। मैं समझ सकती हूँ ये दुनिया बहुत जालिम है, मगर यहाँ तो भाई ने ही जीते जागते इंसान को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उसकी आंखों को पहुंचते हुए बोली और उसका हाथ सख्ती से सामती सदाम की जानी बढ़ी थी।
मेरी एक आखिरी बात बस इसके मुतालिक, जिसके जरिए आपको इस बात का इल्म हुआ है उसे बोल दीजिएगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हो। आज एक भाई जो अपनी बहन पर जान छिड़कता था उसका बेदर्दी से खून कराया है। अब शायद ना वो बहन रहे और ना ही वो भाई। मैं अपनी शिद्दत बर्दाश्त कर लूंगी मगर किसी बेगुनाह की नहीं। गलतियों पर तहम्मुल से भी समझाया जाता है, मगर यहाँ पर तो आपने उसके किरदार पर उंगली उठाई है और वो जवाब में फिर भी कुछ नहीं बोली। इससे बढ़कर क्या एहतराम होगा उसकी आंखों में आपका। काश ये थप्पड़ आपको मेरे बजाय उसने मारा होता। वो एक भीगी काटदार निगाह उस पर डालते उसे ये जीनों की जानिब बढ़ गई। आदिल ने अफसुर्दगी से उसके बुश्त को तका, उनका दिल फट रहा था उसके चेहरे पर जख्म देखकर। इससे ज्यादा ये सोच सोच कर जान निकल रही थी कि ये सब सद्दाम ने किया है। मैं एक बात समझ नहीं पाया आफिया, शेहराम तो शादीशुदा है तो फिर हमारी परीसा वीना भी जानी जाती परीसा के कदमों को उनके बाल पर बेसाख्ता ब्रेक लगी। अफीफा की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। उसने उलझन भरी निगाहों से परीसा की जानिब देखा, जिसे आदिल की गैर मुतवक्का बात सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी समातों में सीसा अंडेल दिया हो। फिजा में ऑक्सीजन की कमी से महसूस हुई। अफीफा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। परीसा ने झटके से रुख मोड़ते आदिल की जानिब देखा जो आफिया से मुखातिब थे। वो गायब दिमागी की कैफियत में एक नजर उन्हें देखते लड़खड़ाते कदमों समेत जीने चढ़ गई। उसकी हालत देखा फीफा की आंखें आंसुओं से भरी थी, जिसकी रंगत जल्द पड़ रही थी। ये बात इन दोनों के लिए किसी धचके से कम नहीं थी कि शेहराम शादीशुदा था। आज फरीसा को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो सच सच में सब कुछ हार गई हो। हाँ, आज वो सब कुछ हार गई थी। अपने भाई की मोहब्बत और एतमाद, अपनी मोहब्बत, सब कुछ किसी रेत की माने जिसके हाथ से फिसल गया था। सब्र करो मेरी जान, अफीफा उसके कान में करने वाले अंदाज में बोली। सब्र ही नहीं आता, मरे हुए को भी सब्र आ जाता है, मगर जिंदा पर सब्र कैसे करते हैं? प्लीज मुझे करना सिखा दो तुम। वो उसका हाथ थामते हुए मुर्तजियाना लबो लहजे में बोली। अफीफा ने उसकी बात पर अपने गालों पर बहने वाले आंसुओं को पहुंचे से गले से लगाया था। वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ती तो परी को कौन संभालता। वो तो अजल से ही किसी और के थे और मैं उन्हें दुआओं में मांगा करती थी। मैंने अपने ख्वाबों की इतनी बुरी ताबीर तो नहीं चाही थी अफीफा। मैं कैसे सब्र करूं? वो भराए लहजे में बोलती, उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। अफीफा ने सद्दाम की बातें याद करते एक बार फिर उसे सीने में भेजा था। शायद उसके जख्मों पर मरहम रखना चाहती थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा सद्दाम, क्योंकि शायद अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। बस एक बात कहूंगा कि एक बार अपने बाप के कहने पर उस लड़की से जरूर इस्तफसार करना कि उसका तुम्हें वीडियो दिखाने का मकसद क्या था। क्या पाया उसने ये सब करके, और उसके पास ये वीडियो आई कहाँ से थी? अब सवालों के जवाब पूछना तुम पे लाजिम है। वो एक खाली खाली निगाह उस पर डालते मरियल कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। आविया भी उनके ताकों में कमरे की जानिब बढ़ी थी। सदाम के जहन में मुसलसल उन सबकी बातें गड़बड़ हो रही थी। उसने दुखते सर को दोनों हाथों में थामा तो कोमल की बातें जहन में गड़बड़ होने लगी। वो एकदम किसी नतीजे पर पहुंचते भागने वाले अंदाज में पोर्च की जानिब बढ़ा था। उसे अब इन सवालों के जवाब उसी के पास से मिलने थे। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही अफीफा को उस पे हाथ उठाना याद करते हुए तनक्कुर से लग भेज गया। इस कदर धड़ल्ले से उस लड़की ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था, मगर फिर उसकी बातें याद करते हुए सर झटक गया और इग्निशन में चाबी घुमाते गाड़ी कोमल के घर की गली की जानिब मोड़ दी। उसके घर के बाबू ठीक से तो वो नहीं जानता था, क्योंकि एक दो बारी वो उसे ड्रॉप कर पाया था। वो हमेशा उसे टोक देती थी। कुछ तो था जो गलत था, मगर फिर वक्त वो कुछ भी समझने से काफी था।